ओके। हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? ऑलरेडी 420 पार्टिसिपेंट्स आर हेयर। सो काफी सारे लोग मुझे पहली बार देख रहे होंगे। सो गाइस, माय नेम इज विवेक एंड आई एम योर न्यू होस्ट। और मेरी तरह बहुत सारे लोग भी यहाँ पे नए होंगे। तो कितने सारे लोग आज हमारे साथ पहली बार इस वेबिनार को अटेंड कर रहे हैं, जरा एक बार चैट बॉक्स में अगर आप लिख करके बताएंगे मुझे। ओके गाइस, चैट बॉक्स इज ओपन नाउ। बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं। जसमीत, नवनीत, पुनीत, गायत्री, सोनू, ज्योति, ऐश्वर्या। ऑल राइट गाइस, बहुत सारे लोग हमारे साथ नए जुड़े हैं आज। ओके। ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट। सो एज यू ऑल नो, आज की जो वेबिनार होने वाला है वो फ्रीलांसिंग के ऊपर होने वाला है। तो जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, जो फ्रीलांसिंग जिनको अच्छा लगता है, जो फ्रीलांसिंग को एज अ फुल टाइम करियर या फिर एज अ साइड सोर्स ऑफ इनकम ऑप्ट करने की सोच रहे हैं, तो उनके लिए लाइव सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आज की हमारी जो गेस्ट है, आज की जो हमारी ट्रेनर है, वो श्रुति है। सो हाय श्रुति। और श्रुति बेसिकली एक डिजिटल कंटेंट क्रिएटर है, उनको 4 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। तो आई होप आज का जो लाइव सेशन होने वाला है उसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हम लोग सीखेंगे, बहुत सारी चीज़ें कवर करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट। ओवर टू यू श्रुति। Hi guys, thank you so much for the great introduction. Okay, can you all hear me first of all? Is my voice clearly audible? Somebody please respond यस on the श्रुति, chat. यू आर ऑडिबल, यू आर ऑडिबल। Okay, okay, great. So I'll just introduce myself a little bit. So I have been a freelancer for almost 3+ years now. And last year I transitioned that freelancing journey into an agency. So right now I run 2 agencies simultaneously. And I have my own coaching business. And then I'm also a content creator on Instagram and LinkedIn. And I've trained more than 400+ students till now. So I hope that you all are gonna find like a lot of value in the 3 days that we are going to discuss everything about freelancing. And today's session is going to be very, very extensive. If I show you the PPT, it's 87 slides. So you can understand like what all information we are going to cover. And it's not just for beginners. अगर यहाँ पे existing कोई freelancer है जिसको knowledge already है, जो already clients के साथ काम कर रहा है, this is also for them. So yeah, give me a thumbs up in the chat if you all are ready, and I'll start presenting my screen so that we can delve into the session directly. Okay, I can see a lot of excitement on the chat. I'll just present my screen, and can you give me the permission to host and start present my screen, please? ओके, श्योर, या। I'm still not able to present. Okay, wait a while, I'll just keeping. Yeah. Also, just let me know कि मैं हिंदी में बात करूँ, इंग्लिश में बात करूँ, किस लैंग्वेज में आप लोग कंफर्टेबल हो तो मैं उसमें बात करूँ फिर। कुछ कुछ लोग इंग्लिश बोल रहे हैं, कुछ कुछ लोग हिंदी बोल रहे हैं. व्हाट शुड आई डू? ओके, आई स्पीक बोथ लैंग्वेजेस. मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में यूज करके बात करती हूँ तो आप लोगों को समझ में अच्छे से आएगा. Okay? Great. Let me share my screen. अभी तक I'm not able to share my screen. Um, can you please give me permission to share my screen? I'm still not able to do it. I think Shruti, it's a technical glitch. I'm just resolving it. Just give me a minute. Okay, sure.
म्यूट करती हूँ। Shruti, can you please check if you are able to sort it? Yes, I'm able Okay. to. Just Okay. let me know what language do you all prefer because ये लोग तो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल रहे हैं, तो क्या करूँगा? So इंग्लिश रखते हैं, बेसिकली दोनों कवर हो जाएंगी. Okay. Done. Okay, Shruti. Okay. Let me just present my screen. Okay. Please let me know in the chat. Are you able to see my screen? Is everybody able to see my screen? सब स्क्रीन देख पा रहे हैं? Okay. Great. ठीक है. अभी just let me know how many of you all have already already know about freelancing या जो लोग already freelancing कर रहे हैं. कितने ऐसे लोग हैं जो लोग को freelancing के बारे में पता है और जो लोग already freelancing कर रहे हैं? Okay. ठीक है. तो can anybody tell me on the chat what do you think freelancing is? Freelancing क्या है? Freelancing का मतलब क्या है? जो कर रहे हैं already, please let me know what you all mean by freelancing. Digital marketing, किसी ने बोला है do someone's work, creating own brand, free to work, no, work without social media, providing services. The Damini is थोड़ा right. Okay, we will start from scratch. हम यहाँ scratch से बात करेंगे ताकि जिन लोगों को पता ही नहीं है कि freelancing क्या है, उन लोगों को भी clearly समझ में आ जाए, right? We will also discuss what is freelancing. तो आज हम क्या-क्या सीखने वाले हैं, पहले वो देखते हैं. आज हम जानने वाले हैं what is freelancing, एक 6-day road map, क्या freelancing शुरू कैसे कर सकते हो. Of course, वो 6 day में implement नहीं होगा, it will take time, but I will present it as a 6-day road map. अब आप उसमें जितना भी time spend करो, वो आप पे depend करता है. Then we will learn about identifying your skill, finding your niche, building your portfolio. कैसे build करें एक portfolio? We will build a portfolio together. How to build an offer? Offer क्या होता है? We will discuss that also, and how to build an offer. How to package your services ताकि आप ज़्यादा charge कर सको clients को. How to get clients as a beginner. और उसके लिए पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अपना पर्सनल ब्रांड कैसे बिल्ड करें ऑन लिंक्डइन एंड ऑन इंस्टाग्राम. And then ways to generate ultimate content ideas for Instagram and LinkedIn. फिर inbound leads कैसे generate करें, और फिर क्या क्या नहीं करना चाहिए एज अ फ्रीलांसर, क्योंकि बहुत सारी गलतियां होती है जो हम करते हैं. सो या कूल. सो जस्ट लेटिंग यू नो कि इस मास्टर क्लास से आपको क्या क्या नहीं मिलेगा. इस मास्टर क्लास से आपको एक कोई हम कोर्स स्किल नहीं सिखा रहे. वी विल नॉट टीच यू एनी कोर्स स्किल कि सोशल मीडिया मैनेजमेंट सिखाया, जिसके कोई स्किल नहीं सिखा रहे. बेसिकली अगर आपके पास एक स्किल है तो आप उसको मोनेटाइज करना सीख सकते हो थ्रू फ्रीलांसिंग, बट आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू अ स्किल हियर. अगर आपको स्किल सीखना है तो बिज गुरुकुल में ऑलरेडी बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है जिनमें जाकर आप स्किल सीख सकते हो और फिर फ्रीलांसिंग का यूज करके उसको मोनेटाइज कर सकते हो, उसके लिए क्लाइंट ढूंढ सकते हो. ठीक है. इस मास्टर क्लास से आपको कोई इंस्टेंट हैक्स भी नहीं मिलेगा कि आपने आज इंप्लीमेंट करना शुरू किया आपको कल क्लाइंट मिल गया. इट्स अ जर्नी एंड इट टेक्स टाइम. कोई वो शॉर्टकट्स और क्विक मनी वाली स्कीम यहाँ पे नहीं है. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, सो व्हाट इज फ्रीलांसिंग एग्जैक्टली? फ्रीलांसिंग है क्या? तो आप लोगों ने बहुत बोला कि फ्री में काम करना या फिर किसी को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना. तो दिस ऑल आर पार्ट्स ऑफ इट, एंड फ्री में काम करना इज नॉट फ्रीलांसिंग. So let me tell you what exactly freelancing is. So basically freelancing is any service that you offer to any of your client. तो basically आप वहाँ पे किसी के अंडर काम नहीं करते हो, आप प्रोजेक्ट्स लेते हो, प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करते हो, आपको उसके लिए पेमेंट मिलता है. आप वहाँ पर किसी के अंडर जॉब नहीं कर रहे हो. तो बेसिकली
यू हैव समथिंग जो लोगों के लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकता है, आप उनको प्रोवाइड करते हो और उसके बदले में वो आपको पैसे देते हैं. That's what freelancing is in very layman terms. ठीक है. Now, what does being a freelancer look like? कैसा होता है एक फ्रीलांसर बनना, राइट? तो आप अगर आप एक फ्रीलांसर बन रहे हो तो यू विल बी वर्किंग ऑन स्पेसिफिक जॉब्स और टास्क, और आपको हर एक टास्क के लिए पैसे मिलेंगे. ठीक है. शॉर्ट टाइम प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, रिटेनर प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप किस क्या सर्विस है. आप जहाँ से आपको मन आप वहां से काम कर सकते हो, तो आपका वर्क लाइफ बैलेंस बेटर होता है. आपको बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिलती है, क्योंकि जब आप जॉब कर रहे हो तो आपका एक स्पेसिफिक रोल होता है. जब आप फ्रीलांस कर रहे हो तो आप ही अकाउंटिंग कर रहे हो, आप ही अपनी मार्केटिंग कर रहे हो, आप ही अपना मैनेजमेंट कर रहे हो, सब कुछ आप कर रहे हो, हायरिंग आप कर रहे हो, सब कुछ आप कर रहे हो. सो इन दैट केस यू गेट टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, बिकॉज यहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट चीजें कर रहे हो, राइट? नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड हाउ टू गेट इनटू फ्रीलांसिंग. नाउ आप इमेजिन कर लो आपके पास कुछ भी स्किल है, चाहे आप राइटर हो, चाहे आप वीडियो एडिटर हो, चाहे आप ग्राफिक डिजाइनर हो, एंड उस स्किल के साथ आप आज फ्रीलांसिंग शुरू करते हैं. तो आपका आगे के हम कैसे आगे लेके जाए उस चीज को, अब हम वो डिस्कस करेंगे एक 6 डे रोड मैप की मदद से. ठीक है. ओके. सो पहला चीज है आइडेंटिफिकेशन ऑफ योर स्किल. आपको पहले क्या करना है, आपको ये समझना है कि आपके पास स्किल कौन सी है बेसिकली. तो आप जैसे आप अगर क्योंकि ऐसा होता नहीं है कि हम कोई स्किल पूरी तरीके से लर्न करते हैं, हमारे अंदर कुछ कुछ चीजें ऑलरेडी होती है, हम सिर्फ उसको एक्सप्लोर करते हैं, इवॉल्व करते हैं विद टाइम. जैसे मैं शुरू से ही पोएम्स लिखने में अच्छी थी, तो मुझे पता था कि अगर मैं पोएम्स लिख सकती हूँ तो मैं लिख सकती हूँ अच्छा किसी भी फील्ड में. अब मुझे बस वो फॉर्मेट लर्न करने की जरूरत थी कि अच्छा मैं ब्लॉग सीखूं या मैं सोशल मीडिया कंटेंट लिखना सीखूं. बट हम कुछ ना कुछ स्किल में नेचुरली अच्छे होते हैं. कोई कोई लोग बहुत ज्यादा ड्राइंग में अच्छे होते हैं, तो उनके लिए इलस्ट्रेशन, ग्राफिक डिजाइनिंग ये बहुत अच्छी फील्ड है. कुछ कुछ लोगों को गेम्स और टेक्निकल चीजें बहुत पसंद होती है, तो उनके लिए वेबसाइट डिजाइनिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ये सब बहुत ज्यादा अच्छी चीजें हैं. वीडियो एडिटिंग, जो लोग क्रिएटिव है बाय नेचर वो लोग वीडियो एडिटिंग, स्टोरी टेलिंग, ये सब में जा सकते हैं. तो हमारे अंदर कुछ कुछ चीजें ऑलरेडी होती है. अगर आपको सोशल मीडिया यूज करना बहुत ज्यादा पसंद है तो आप सोशल मीडिया मार्केटिंग में जा सकते हो. अगर आप हर टाइम इंस्टाग्राम यूज करते हो तो आपको पता है कि इंस्टाग्राम पे क्या चलता है, कैसे ट्रेंड्स होते हैं, कैसे ग्रोथ आती है, तो आप सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हो, राइट? तो ये ऐसे आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आप किस चीज में अच्छे हो. उसके बाद अब जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि आप किस चीज में अच्छे हो, हम उसके अंदर नीशेस ढूंढे. अब आपको नीश एक दिन में नहीं मिलेगी. आज 3 साल हो गए मुझे फ्रीलांसिंग करते हुए. देन आई नो दैट ओके आई वांट टू वर्क विद क्लाइंट्स जो वेब3 में है, जो सैस में है, जो कोचिंग में है, जो फाइनेंस में है. मुझे ये 4 चीजें खुद के लिए पता है. बट आपको स्टार्टिंग से ये चीजें नहीं पता होंगी. यू विल ओनली नो दिस आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम. So when you start with like everything, सारे projects देना शुरू कर दो, and then eventually you will figure out कि आपको exactly क्या करना है. So first thing is you how to find your niche. You research high paying skills in your niches. अगर आप मान लो एक writer हो तो आप choose कर रहे हो कि आप writing करोगे, तो you figure out कि कौन से niches है जो मुझे अच्छा पे कर सकते हैं in writing. अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हो तो आपको ये फिगर आउट करना पड़ेगा कि ओके सोशल मीडिया मार्केटिंग में किस सर्विस की ज्यादा मतलब किस नीश में ज्यादा डिमांड है. अभी जैसे कोचिंग इंडस्ट्री में काफी डिमांड है सोशल मीडिया मैनेजर्स की, टैरो कार्ड रीडर्स को काफी ज्यादा डिमांड है. तो आपको वैसे फिगर आउट करना पड़ेगा कि अच्छा कौन से सर कौन से मार्केट में मेरी सर्विस की ज्यादा डिमांड है. अब आप ये कैसे पता कर सकते हो, आप दूसरे फ्रीलांसर्स से नेटवर्क कर सकते हो, उनसे पूछ सकते हो कि अच्छा क्या किस नीश में क्या चल रहा है, कैसे क्लाइंट्स मिल रहे हैं उनको. आप इंडस्ट्री इवेंट्स अटेंड कर सकते हो. तो अगर आप कोई भी D2C ई कॉमर्स का इवेंट्स हो रहा है, या कोई भी वेब3 का इवेंट हो रहा है, कोई टेक्निकल इवेंट हो रहा है, आप वहाँ जाके देखो किस टाइप के ब्रांड्स क्या टाइप की सर्विसेज ढूंढ रहे हैं. या फिर आप फाइवर और अपवर्क पे देख सकते हो कि किस सर्विस की डिमांड ज्यादा है, किस नीश में चीजें ज्यादा अच्छी हो रही है. फिर आप ऑनलाइन कम्युनिटीज ज्वाइन कर सकते हो, फेसबुक ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, लिंक्डइन ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, एंड उस पर आप क्वेश्चंस डाल सकते हो कि आपको क्या लगता है कौन से नीश में इसकी ज्यादा डिमांड है, राइट? तो उसके थ्रू भी आपको आपके आंसर्स मिलेंगे. Now again, repeating the same thing that finding your niche is not a one day process. It takes time. तो आप जब शुरू करो तो आप मल्टीपल चीजें एक्सप्लोर करना शुरू करो, क्योंकि अगर आप एक्सप्लोर नहीं करोगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि अच्छा मुझे एग्जैक्टली क्या करना है और आप किसमें अच्छे हो, राइट? मैंने 3 साल करा है तब जाके अब मुझे समझ में आया, बट इट विल टेक टाइम. Okay, now what you need to do is you need to build your assets. Before even you start freelancing, आपको अपने assets build करना. अब what do you mean by assets? आपको पहले अपने टारगेट ऑडियंस आइडेंटिफाई करना कि अगर आप एक सोशल मीडिया मार्केटर हो तो आप किसको सर्विस दोगे. विल यू गिव इट टू कोचेस, विल यू गिव इट टू फाउंडर्स, आपको किसके लिए काम करना है.
आपको वो समझना पड़ेगा बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बेसिस पे ही हम सारी चीजें कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल लेती हूँ सोशल मीडिया मार्केटिंग का। अब मान लो आप एक सोशल मीडिया मार्केटर हो, आपको कोचेस को सर्विस ऑफर करनी है, राइट? तो अब कोचेस कहाँ ज्यादा हैंग आउट करते हैं? कोचेस ज्यादा इंस्टाग्राम पे एक्टिव है, या कोचेस ज्यादा लिंक्डइन पे एक्टिव है, या कोचेस ज्यादा फेसबुक पे एक्टिव है? आपको ये फिगर आउट करना पड़ेगा। तो मेरे अकॉर्डिंग जितना मैंने रिसर्च किया, कोचेस लिंक्डइन इंस्टाग्राम दोनों पे इक्वली एक्टिव है। इंडियन कोचेस ज्यादातर इंस्टाग्राम पे है, इंटरनेशनल भी है, बट इंटरनेशनल ज्यादा लिंक्डइन के थ्रू आपको मिल सकते हैं। तो आपके लिए प्राइमरी प्लेटफॉर्म लिंक्डइन और इंस्टाग्राम होगे, जहां आप कंटेंट बनाओगे, जहां आप आउटरीच करोगे। आउटरीच हम डिस्कस करेंगे आगे, बट अभी एक प्रोफाइल बनाना है आपको। सिर्फ आपका अगर अभी एग्जिस्टिंग कोई पर्सनल प्रोफाइल है वो नहीं चलेगा, आपको एक न्यू प्रोफाइल बनानी चाहिए मेरे हिसाब से, जब आप फ्रीलांसिंग शुरू कर रहे हो, या फिर अगर अभी आप एफिलिएट मार्केटिंग भी कर रहे हो तो आपका वो जो प्रोफाइल है उसको भी आप यूटिलाइज करके बना सकते हो, उसको कन्वर्ट कर सकते हो बेसिक फ्रीलांसिंग में। बस वो पब्लिक अकाउंट होना चाहिए, वो प्रोफेशनल दिखना चाहिए, राइट? हम वो डिस्कस करेंगे कि कैसे बनाते हैं अकाउंट वगैरह भी, बट यू नीड टू फर्स्ट फिगर आउट कि कहाँ पर आपकी टारगेट ऑडियंस एक्टिव है, ताकि वहां आप कंटेंट बनाना शुरू कर सको। तो लेट्स टेक लिंक्डइन एंड इंस्टाग्राम। easiest platform to grow is LinkedIn. LinkedIn से आपको clients भी जल्दी मिलेंगे and आप grow भी जल्दी कर पाओगे. Instagram is a lot of effort taking and very exhaustive platform. तो आप वन डे में ग्रोथ नहीं देखोगे, आपको रील पे 300-400 व्यूज आएंगे, तो वो आपको उसके उतनी पेशेंस होनी पड़ेगी। तो अगर आपके अंदर वो है तो आप इंस्टाग्राम शुरू करो, वरना आई वुड से स्टार्ट विथ लिंक्डइन। ठीक है, आपको एक आपने सिलेक्ट कर लिया कि आपको कहाँ अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना है। अब आप वहां पे कंटेंट बनाना शुरू करोगे और अपने नीश के लोगों से कनेक्ट करना शुरू करोगे। ये हम डिस्कस करेंगे बाद में जब हम कंटेंट पे बात करेंगे, बट अभी के लिए आप प्रोफाइल बना लो। आप उसमें 3 टाइप के लोगों के साथ कनेक्ट करना शुरू करो। पहला, जो आपके नीश में है, मतलब अगर आप सोशल मीडिया मैनेजर हो तो दूसरे सोशल मीडिया मैनेजर्स को फॉलो करो जो बिगिनर्स है या जो आपसे एक लेवल ऊपर है। मान लो आपके, अगर आप 0 से शुरू कर रहे हो तो कोई इंसान के 500 फॉलोअर्स है, वो भी आपके लेवल का होगा, बस आपसे थोड़ा सा ऊपर होगा, तो उनके साथ बातचीत करना शुरू करो। तीसरा, आप जिनके साथ कनेक्ट करोगे वो हो गए इंडस्ट्री लीडर्स। तो जो लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी रन कर रहे हैं, जैसे कि मैं, आप मेरे को फॉलो करोगे। क्यों? क्योंकि मैं बहुत बार हायरिंग अपॉर्चुनिटीज डालते रहती हूँ और मैं बिगिनर्स हायर करती हूँ, राइट? मेरे जैसे लोग मोस्टली जब नई एजेंसी शुरू करते हैं तो दे हायर बिगिनर्स। तो आपको वो हायरिंग अपॉर्चुनिटीज का हमेशा अपडेट रहेगा। दैट्स व्हाई आई सजेस्ट ये 3 लोगों के साथ आप प्रोफाइल बना के ही फॉलो करना शुरू कर दो, भले ही आप कंटेंट नहीं भी बना रहे हो तो भी। ठीक है, नाउ डे 3 में वी विल स्टार्ट बिल्डिंग योर पोर्टफोलियो। अब पोर्टफोलियो क्या होता है, कैसे बनता है? एनीबडी नो व्हाट्स अ पोर्टफोलियो? किसी को पता है? आई डोंट वांट द सेशन टू बी जस्ट मी स्पीकिंग, आई वांट इट टू बी इंटरैक्टिव। तो या ओके, yes, a lot of people are right, a lot of people are right. Okay, so basically a portfolio is just like a resume, जैसे आप लोग ने बोला, but it's more in depth. resume में आप सिर्फ लिस्ट डाउन कर देते हो कि आपने क्या क्या किया, it's more in depth. ठीक है, now why do you need a portfolio? because एक पोर्टफोलियो में एक सोशल प्रूफ होता है, लोग आपके एक्सपर्टीज को देख सकते हैं बिफोर हायरिंग। जैसे आप कहीं जाते हो तो आप पहले किसी के आप कोई कपड़ा भी खरीदने जाओगे तो आपको देखोगे ना कैसा है काम, उसके बाद आप खरीदते हो। तो वैसे ही जब कोई क्लाइंट आपकी सर्विसेज दे रहा है तो उसको भी आपका काम समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो यू नीड अ पोर्टफोलियो। नाउ पोर्टफोलियो बनाने से पहले, इफ एवरीबडी हियर इज अ बिगिनर, आपको अपने सैंपल्स बनाने होंगे। अब आपके पास कोई क्लाइंट ही नहीं है तो आप सैंपल्स कैसे बनाओगे? तो पहला, यू कैन गिव योरसेल्फ अ फेक प्रोजेक्ट। नाउ व्हाट्स अ फेक प्रोजेक्ट? लेट मी एक्सप्लेन दैट टू यू। तो ऐसे ना एक वेबसाइट है fakeclients.com। तो आप जब इस पे जाते हो, यस, तो ये जो fakeclients.com है, यहाँ पे आपको ब्रीफ्स मिल जाते हैं। तो मान लो आप एक लोगो डिजाइनर हो, तो आप यहाँ लोगो डिजाइन पे क्लिक करोगे ना, तो आपको देखो जैसे एक ब्रीफ मिल गया दैट हाय, ये आई एम ए चिल्ड्रन बुक इलस्ट्रेटर, आई नीड अ लोगो ऑफ माय ओन नेम फॉर माय वेबसाइट सोशल। इसने पूरा डिस्क्राइब कर दिया। आप इस ब्रीफ को लेके आप एक लोगो बना लो, तो वो आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर पाओगे और आप क्लाइंट्स को बोल सकते हो कि ये मेरे मॉक प्रोजेक्ट्स है। इसको मॉक प्रोजेक्ट बोलते हैं, जो आप रियल में नहीं कर रहे बट आप कर रहे हो प्रोजेक्ट, शोकेस हो वो। तो आपके पास जब कोई क्लाइंट नहीं है तो आप ऐसे करके अपना वर्क बना के अपने पोर्टफोलियो में शोकेस कर सकते हो, राइट?
इसके और भी बेस है। अगर आपको fakeclient.com से नहीं करना तो आप चैट जीपीटी को भी यूज कर सकते हो। आप चैट जीपीटी पे प्रॉम्प्ट डाल सकते हो दैट हाई आई एम अ बिगिनर, हाउ टू लुकिंग फॉर इनिशियल वर्क टू शोकेस माय स्किल्स, गिव मी सम सैंपल प्रोजेक्ट आइडियाज टू वर्क ऑन। वो आपको दे देगा। आप उधर से लेके काम करना शुरू कर दो एंड प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर दो, बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब कोई आपका काम नहीं देखेगा तो उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आपको हायर करना। देन थर्ड जो वे है सैंपल्स बनाने का, मान लो आप एक सोशल मीडिया मार्केटर हो, ठीक है, या फिर मान लो आप एक लिंक्डइन घोस्ट राइटर हो, लिंक्डइन पे जो कंटेंट लिखते हैं दूसरों के लिए। तो आप मेरे लिंक्डइन, आपको मान लो एजेंसी ओनर्स के साथ काम करना है, आप जाओगे मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल पे, आप देखोगे कि मैं कैसा कंटेंट डालती हूँ, एंड आप मेरे लिए 2-3 पोस्ट लिख लो एंड उसको अपने पोर्टफोलियो में डाल लो। तो इससे दो चीजें होती है, एक, आप मुझे अप्रोच कर पाओगे दैट हे श्रुति, आई हैव रिटन 3 पोस्ट फॉर यू, इफ यू लाइक इट लेट्स टॉक फर्दर, इफ यू वांट टू वर्क विद मी, राइट। दूसरा, अगर मैंने आपको नहीं भी हायर किया तो आप अपने पोर्टफोलियो में दिखा सकते हो दैट मैंने श्रुति के लिए मॉक प्रोजेक्ट 2 दिन किया था। ऐसा मत बोलना कि श्रुति ने मुझे हायर किया था और मैंने लिखा था, मैंने मॉक किया था, बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर क्लाइंट को पता चलेगा कि आप झूठ बोल रहे हो तो चीजें बिगड़ जाएंगी, राइट। सो दीज आर द 3 ways you can build your samples even without having clients, right? नाउ पोर्टफोलियो बनाना कहाँ पे? ये बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जहाँ आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हो। पहला है कैनवा, जो कि सबसे इजी है, आई थिंक सबको यूज करना आता होगा। दूसरा है विक्स, विक्स बोल के एक फ्री वेबसाइट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप बना सकते हो अपना पोर्टफोलियो वेबसाइट फॉर्मेट में। थर्ड है फ्यूलर, फ्यूलर इज अ प्लेटफॉर्म जो फ्रीलांसर्स के लिए बना है। वो लोग काफी ज्यादा सपोर्ट करते हैं फ्रीलांसर्स को अपॉर्चुनिटीज देने में, हायरिंग करने में, एंड उनकी कम्युनिटी है व्हाट्सएप पे, वो भी बहुत ज्यादा सपोर्टिव और अच्छी है। तो आप फ्यूलर, अगर आई थिंक इट कॉस्ट 1000-1500 रुपीज आपको चाहिए तो आप वो ज्वाइन कर सकते हो। फोर्थ है बिहांस। तो बिहांस यहाँ पे जितने भी डिजाइनर्स है, वेबसाइट हो जाए, यूआई यूएक्स हो जाए, ग्राफिक हो जाए, उन लोगों के लिए बिहांस इज वेरी गुड। एंड देन इज नोशन। मैं आपको थोड़े एग्जांपल्स भी दूंगी पोर्टफोलियो के, बट बिफोर दैट लेट्स अंडरस्टैंड कि आपको अपने पोर्टफोलियो में डालना क्या है। तो पहला जो आपके पोर्टफोलियो में एलिमेंट जाता है दैट्स अबाउट मी। उसके बाद आता है आपकी सर्विसेज, क्या प्रोसेस आप फॉलो करते हो, आपके प्रैक्टिस प्रोजेक्ट्स, आप जो अपने सैंपल्स अभी क्रिएट किए, केस स्टडीज जब आपके पास बाद में क्लाइंट के रिजल्ट्स आ जाएंगे तो वो, आपका यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन कि लोग आपको क्यों चूज करें ओवर हंड्रेड्स ऑफ अदर सोशल मीडिया मार्केटर्स, आपके सोशल मीडिया का हैंडल्स, एक कॉल का लिंक ताकि क्लाइंट्स आपके साथ कॉल बुक कर सके। अब हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। अगर आप एक फ्रेशर हो तो आपके पास ये सारी चीजें जो मैंने बताई वो नहीं हो सकती है, जैसे कि रिजल्ट्स, टेस्टिमोनियल्स, बट धीरे धीरे हमारे पास वो चीजें आ जाएगी। वी विल डिस्कस हाउ टू गेट दैट, ठीक है। नाउ लेट्स बिल्ड अ पोर्टफोलियो टुगेदर। तो पहले आप जाओगे कैनवा पे, अभी नहीं बनाना है, आप बाद में बना सकते हो इस सेशन के बाद, एंड कल मुझे चाहिए तो आप ऑडिट करने के लिए दिखा सकते हो। अभी मैं आपको सिर्फ एक जर्नी पे लेके जा रही हूँ कि कैसे बनाना है अपना पोर्टफोलियो, राइट। तो पहले आप कैनवा पे जाओ, आप कैनवा पे जाके सर्च करोगे अगर पोर्टफोलियो टेम्पलेट, तो आपको बहुत सारे टेम्पलेट मिल जाएंगे। आप उनमें से कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हो जो आपको लगता है कि आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब वहाँ पे फर्स्ट पेज कवर पेज होगा, कवर पेज में आपकी एक फोटो रहेगी, या फिर अगर आप एजेंसी ओनर हो तो आपका एक लोगो रहेगा, एंड वहाँ पे आप किस पोर्टफोलियो, किस बारे में, कॉपी राइटिंग पोर्टफोलियो या पर्सनल ब्रांडिंग पोर्टफोलियो, वो उसका नाम रहेगा, ठीक है। उसके बाद आता है एक टेबल ऑफ कंटेंट, कि जैसे एक ओवरव्यू कि आप अपने पोर्टफोलियो में क्या क्या बता रहे हो वो, ताकि क्लाइंट्स को अगर एक पर्टिकुलर चीज देखनी है तो वो उस पर क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है। थर्ड इज अबाउट यू। अबाउट यू में आप कौन हो, आप क्या करते हो, डायरेक्टली अपने प्रोस्पेक्ट से बात करो, 3 से 5 लाइन में समराइज कर दो, ज्यादा उसको एक्सटेंड मत करो, एंड अपने बारे में एक यूएसपी मेंशन करो कि लोग आपको क्यों चूज करें, ठीक है। फोर्थ में अपने सारे स्किल्स डालो कि आप, आपके पास क्या कोर स्किल्स है, क्या सॉफ्ट स्किल्स है, जैसे कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिसर्च, ये सब हो गए सॉफ्ट स्किल। कोर स्किल हो गया आपका सोशल मीडिया मार्केटिंग, राइटिंग, जो भी आप कर रहे हो, फिर वो हो गया। उसके बाद आप अपना वर्क एक्सपीरियंस डालोगे, जो भी हमने अभी सैम्पल्स बनाए आप वो सैम्पल्स डालोगे जो हमने अभी बनाए हैं फेक क्लाइंट्स या फिर क्रिएटर के। उसके बाद आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल सकते हो, अपना फोन नंबर डाल सकते हो, ईमेल डाल सकते हो, या फिर कॉल का लिंक डाल सकते हो, तो ताकि क्लाइंट्स आपको डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सके। अब मैं आपको दिखा देती हूँ थोड़े पोर्टफोलियो के सैंपल्स। माय नेट इज स्लो ऑन दिस, ठीक है। मैं भी ये आपको प्रेजेंट करके दिखाती हूँ। पहले मैं आपको एक नोशन का भी दिखा देती हूँ, कैनवा का भी दिखाती हूँ, बट अभी नोशन का दिखा देती हूँ। इट्स लोडिंग, गिव मी अ फ्यू मिनट्स। ये लोड नहीं हो रहा है फॉर सम रीजन, ठीक है। मैं आपको कैनवा का दिखाती हूँ फॉर नाउ।
ओके, सो ये एक कैनवा का पोर्टफोलियो जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो जैसे आप ये देख रहे हो, ये क्या है, ये कवर पेज है। कवर पेज में यहाँ पे वंश जो इसका नाम है, इसका पोर्टफोलियो किस बारे में है, और क्या उसने यहाँ पे सीटीए दे दिया है कि आप यहीं से कॉल बुक कर लो डायरेक्टली, ठीक है। उसके बाद आता है ये, हाँ, उसके बाद आता है इसका अबाउट मी पेज। अबाउट मी में इसने देखो सिर्फ काम की बात की है, हाई आई एम अ स्किल्ड फ्रीलांसर, वो क्या करता है, उसके पास कितना एक्सपीरियंस है, उसको क्या क्या करना पसंद है, उसको क्यों चूज करे। तो ही हैज मेंशन्ड हिज यूएसपी दैट आई हैव अ नेचुरल एबिलिटी टू क्राफ्ट कंपेलिंग कंटेंट दैट कनेक्ट्स विद द टारगेट ऑडियंस एंड ड्राइव्स कन्वर्जन। ये इसका यूएसपी है। वैसे आपके पास कुछ यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन है, आप वो यहाँ पे डाल सकते हो। फिर उसका काम है जो उसने, हमने सैम्पल्स बनाए वैसे इसने भी अपने सैम्पल्स डाले हुए हैं। फिर इसने अपने स्किल्स डाले, जैसे मैंने आपको बताया आपको अपने स्किल्स डालने हैं, स्किल्स डाले। उसकी वजह से और सैम्पल्स डाले, फिर इससे टेस्टिमोनियल्स डाले। टेस्टिमोनियल्स आपके पास बाद में आएंगे, पहले नहीं आएंगे। तो रीच आउट, फिर लास्ट एक सीटीए पेज है जहाँ इसके सोशल मीडिया वगैरह है, ठीक है। अब टेस्टिमोनियल्स कैसे लाए, अगर आपके पास आप बिगिनर हो तो आप क्या कर सकते हो, आप सोशल मीडिया के थ्रू या व्हाट्सएप कम्युनिटीज के थ्रू लोगों को मैसेज कर सकते हो दैट हाई आई एम अ बिगिनर, आई प्रिपेयर्ड दिस फॉर यू। उनको एक फ्री, उनके लिए सोशल मीडिया ऑडिट दे दो, या एक फ्री पोस्ट लिख के दे दो, या फ्री वीडियो एडिट करके दे दो। उनको बोलो दैट आई एम हैप्पी टू वर्क विद यू फॉर फ्री फॉर 1 वीक और 2 वीक्स इन एक्सचेंज ऑफ अ टेस्टिमोनियल। तो आप ऐसे 2-3 लोगों के साथ फ्री में काम करके, जिसको बोलते हैं बीटा प्रोजेक्ट्स या बीटा क्लाइंट्स, उनके साथ आप काम करके टेस्टिमोनियल्स कलेक्ट कर सकते हो और अपने पोर्टफोलियो में डाल सकते हो। देयर आर मल्टीपल कम्युनिटीज लाइक लिंक्डइन विजार्ड्स करके एक कम्युनिटी है, फ्यूलर की एक कम्युनिटी है, स्टार्टअप सनडाउनर करके एक कम्युनिटी है। देयर आर मल्टीपल व्हाट्सएप कम्युनिटी, जस्ट फॉलो क्रिएटर्स। हर क्रिएटर की कम्युनिटी होती है। इन क्रिएटर्स में लोग बिजनेस हायर करने के लिए रेडी होते हैं, या फिर आप सोशल मीडिया पे डेली 10 से 15 लोगों को मैसेज करो दैट यू आर रेडी टू वर्क विद देम फॉर फ्री। थोड़े कम जिन लोगों के पास ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है उन लोग को मैसेज करोगे तो आपको जल्दी मिलने के चांसेस है, क्योंकि वो लोग हमेशा बिगनर्स हायर करते हो, राइट। नाउ लेट्स कम बैक टू दिस एंड लेट्स डिस्कस अबाउट बिल्डिंग योर ऑफर। तो ऑफर क्या होता है, जो आप क्लाइंट को बोलते हो कि आप उनके लिए क्या कर सकते हो। ऑफर में बेसिकली 4 चीजें होती है। आप उनके लिए क्या करोगे, क्या रिजल्ट ला के दोगे, कितने टाइम में ला के दोगे, और क्या गारंटी है कि आप वो रिजल्ट ला के दोगे, राइट। तो प्रॉमिस, रिजल्ट, टाइम एंड गारंटी। लेट्स से मैं बोलूं कि आई विल हेल्प यू क्रिएट कंटेंट ऑन लिंक्डइन व्हिच गेट्स यू 10 लीड्स अ वीक, and if I don't get that result I will work with you for free until I get you that result, ठीक है। तो इसमें मैंने बता दिया मैं क्या करूंगी, मैं क्या रिजल्ट ला के दूंगी, कितने टाइम में ला के दूंगी, एंड नहीं लाऊं तो क्या गारंटी। तो ऐसे आपको अपना एक ऑफर बनाना है। अगर आप बिगिनर हो तो सबसे अच्छी गारंटी जो आप दे सकते हो इस कि जब तक उनको रिजल्ट नहीं आता फ्री में काम करोगे उनके लिए, ठीक है। जैसे कॉपी राइटर्स के लिए वो लिख सकते हैं कि आई विल क्राफ्ट कंपेलिंग कॉपी दैट रेजोनेट्स विद योर टारगेट ऑडियंस एंड बूस्ट एंगेजमेंट। I'll deliver a set of 5 attention grabbing headlines and corresponding body copy for your next marketing campaign. I'll complete the copywriting within 7 business days of receiving the project brief and any necessary materials. If you're not satisfied with the initial drafts, I'll provide 2 rounds of revisions at no extra cost. If you don't see an increase in engagement within the first month of implementing the copy, I will write an additional piece of content for your next campaign free of cost. ठीक है। तो ऐसे आप ब्रेक डाउन कर सकते हो अपने ऑफर को कि क्लाइंट को आप क्या एग्जैक्टली ऑफर कर रहे हो। ग्राफिक डिजाइनर्स भी सेम ऐसे कर सकते हैं दैट आई विल क्रिएट विजुअली स्टनिंग डिजाइंस दैट effectively communicate your brand message. I'll design 3 custom graphics for your social media channels, each tailored to highlight the different aspects of your brand. I deliver the initial designs within 10 business days, allowing time for feedback and revision. अगर ऐसा नहीं होता है, आपको अच्छे नहीं लगते मेरे डिजाइन, तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको 2 राउंड ऑफ रिविजन दूंगी। अगर आपका सोशल मीडिया एंगेजमेंट नहीं इंक्रीज होता उन ग्राफिक्स से तो आई विल गिव यू ग्राफिक फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। देन आता है सोशल मीडिया मैनेजर के लिए भी सेम सेम है। आप इसमें आपको ये पीपीटी शेयर ही कर दूंगी तो आप यूज कर सकते हो इनको भी अपने हिसाब से मॉडिफाई करके, राइट। अब हमने ऑफर तो बना लिया, अब आपने सर्विसेज पैकेज कैसे करोगे। अगर मैं आपसे आप एक क्लाइंट हो, मान लो मैं आपको पिच कर रही हूँ, तो आप क्या प्रेफर करोगे कि मैं आपको बोलूँ कि मैं 300 रुपया एक ग्राफिक का चार्ज करूंगी, या फिर मैं पूरे महीने में आप मुझे जितने भी ग्राफिक्स हो मैं आपको 7,000 रुपीज चार्ज करूंगी। वॉट विल यू चूज, विल यू चूज द फर्स्ट वन और द सेकेंड वन। क्या चूज करोगे आप लोग। अगर आप एक क्लाइंट हो और मैं आपको पिच कर रही हूँ, मैं आपको बोलूँ कि मैं 300 रुपए एक ग्राफिक का चार्ज करूंगी और 7,000 रुपीज पूरे मंथ के ग्राफिक का चार्ज करूंगी, तो आप क्या चूज करोगे। सेकेंड,
राइट, बहुत सारे लोग सेकंड बोल रहे हैं, राइट, बिकॉज वो ज्यादा वैल्यूबल है। अब ये सिर्फ क्लाइंट के लिए वैल्यूबल नहीं है, आप क्लाइंट से ज्यादा चार्ज कर पा रहे हो, आपको 200-300 रुपए के काम नहीं कर रहे हो, आपको एक फिक्स मंथली 7,500 रुपीज आ रहा है। तो हाउ डू पैकेज योर सर्विसेज लाइक दिस? तो आपको पैकेज करने के लिए आप एक तो पहले रेट्स फाइंड आउट करो कि आपको अगर फाइवर पे जाके देखो कि लोग ग्राफिक डिजाइनिंग पर ग्राफिक का क्या चार्ज कर रहे हैं। दूसरे फ्रीलांसर्स के पोर्टफोलियो में भी आप देख सकते हो कि क्या चार्ज कर रहे हैं लोग, पूछ सकते हो लोगों से उनके रेट्स, जो हमने प्रोफाइल बनाई, आपने नेटवर्क करना शुरू किया, वहां से उनसे रेट्स पूछ सकते हो, ठीक है। अब आप कैसे पैकेज कर सकते हो? पहला एक टेक्निक होता है एंकरिंग। तो एंकरिंग इज अ टेक्निक जहाँ पे आप लोगों को मल्टीपल 3 ऑप्शंस देते हो चूज करने के लिए। बेसिक वन, बेसिक पैकेज देते हो, एक प्रीमियम पैकेज देते हो और एक हाई पैकेज देते हो। और लोग मोस्टली मिडिल वाला चूज करते हैं क्योंकि वो एक रेकमेंडेड पैकेज रहता है। ये एक टेक्निक है, साइकोलॉजिकल टेक्निक, एंकरिंग, ठीक है। जैसे बहुत सारी जगह पे आप देखोगे कि ऐसे लिखा होता है बेसिक, प्रोफेशनल और वीआईपी। तो बेसिक है 10,000 रुपीज का, प्रोफेशनल है 15,000 रुपीज का, वीआईपी है 25,000 का। अब मान लो क्लाइंट ने आपको बोला है दैट आपको 5 पोस्ट चाहिए, तो आप बेसिक में 3 डालोगे, प्रोफेशनल में 5 डालोगे और वीआईपी में 7 डालोगे। तो क्लाइंट को लगेगा यार ये तो छोटा पैकेज है, इसमें मुझे इतना ज्यादा मिल भी नहीं रहा, पर बड़े वाले पैकेज की कंपेरेटिवली तो मिडिल वाला सस्ता है, मुझे इसमें जो मुझे चाहिए वो मिल रहा है, इसलिए वो मोस्टली मिडिल वाला पैकेज चूज करते हैं। तो इट्स इंटेंडेड कि आप मिडिल वाले में अपने रेट डालो जिसमें आपको काम करना है, जिस रेट पे आपको काम करना है, ठीक है। एक तरीका ये। दूसरा, आप एक वन टाइम पैकेज दे सकते हो क्लाइंट्स को, कि अब मान लो आप इंस्टेड ऑफ राइटिंग लाइक, आप उनको बोल सकते हो कि 2 ब्लॉग्स या ब्लॉग, लाइक गिव देम अ मोर वैल्यू। जैसे होता है कि क्लाइंट आपको बोलेगा एक वीडियो एडिट करके दे दो या फिर एक ब्लॉग लिख के दे दो। तो इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन टेल मैं आपको 2 ब्लॉग लिख के देती हूँ, मैं आपको ब्लॉग की आउटलाइंस भी दूंगी, मैं आपको 5 रिविजन भी करके दूंगी और मैं आपको एक एक्स्ट्रा ब्लॉग भी लिख के दूंगी इन द फ्यूचर, या फिर मैं उसके लिए एसईओ भी करके दूंगी। तो आप ऐसे करके एक पैकेज बना के उनको वन टाइम पैकेज दे सकते हो। अगर एक ग्राफिक डिजाइनिंग है तो आप उनको लिख सकते हो कि मैं आपके लिए सोशल मीडिया के तो बनाऊंगा, मैं आपको यूट्यूब थंबनेल्स भी बना के दूंगा। तो ऐसे करके आप अपने सर्विसेज को पैकेज करके एक पैकेज में सेल कर सकते हो। ये दूसरा ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। नाउ नाउ वी विल अंडरस्टैंड हाउ टू रीच आउट टू बीटा क्लाइंट्स। तो आप लोगों से टेस्टिमोनियल्स ले सकते हो इन द फॉर्म ऑफ वीडियोस, टेक्स्ट मैसेजेस, ईमेल्स या फिर लिंक्डइन रिकमेंडेशन, और इनको आपको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना है। बट अगर आपको फर्स्ट क्लाइंट कैसे मिलेगा, पहले तो हम वो डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्लाइंट मिलने के लिए आप एक तो बेसिक सर्च कर सकते हो। जैसे आप ट्विटर पे गए, ठीक है, आपने ट्विटर पे जाके सर्च किया हायरिंग प्लस कॉपीराइटर, आपने ये सर्च किया, ठीक है। यहाँ पे आप लेटेस्ट पे जाओगे तो आपको इतने लोग मिलेंगे जो हायर कर रहे हैं कॉपीराइटर, ठीक है। आप यहाँ से डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो प्रोजेक्ट्स पे। एक तो आपको ऐसे मिल सकते हैं क्लाइंट, दूसरा जो मैंने आपको रीच आउट करने बोला आप वैसे कर सकते हो। जैसे मल्टीपल व्हाट्सएप कम्युनिटीज है, जैसे मैं अगर आपको दिखाऊं, इसमें अगर आप इस कम्युनिटी पे जाके सिर्फ हायरिंग सर्च करोगे ना, तो आपको इतने लोगों का मैसेजेस मिलेगा, इतने लोगों का मिलेगा कि आप इन लोगों को डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। यहाँ से आपको बिगिनर्स मिल जाएंगे, देखो, हायरिंग, 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 बहुत सारे इधर बहुत अपॉर्चुनिटीज आते हैं। इंटर्न हायर करते हैं लोग यहाँ पे, तो आपको एक एक्सपोजर बेसिक मिल जाएगा, ठीक है। अगर मैं इधर, हाँ, बिगिनर लिख दूं, लेट मी नॉट राइट बिगिनर, बीटा लिख दो, जो मैंने आपको बीटा क्लाइंट्स बताया। तो जैसे यहाँ पे लोग मैसेजेस डालते हैं, हेलो एवरीवन, आई एम लुकिंग टू वर्क विद अ बीटा क्लाइंट ऑन लिंक्डइन फॉर 1 week, इफ यू वांट टू ग्रो योर लिंक्डइन प्रोफाइल और build your personal brand absolutely free of cost, or have any content writing need, DM me, only accepting the response received from 8 p.m. tonight, please revert back only if you are serious, ठीक है। आई एम लुकिंग फॉर 2 बीटा क्लाइंट्स फॉर लिंक्डइन पर्सनल ब्रांड। तो आप ऐसे करके ये मैसेजेस डाल सकते हो ताकि आपको एक बीटा क्लाइंट फ्री ऑफ कॉस्ट के लिए मिल जाए, ताकि आप उनसे टेस्टिमोनियल कलेक्ट कर सको, ठीक है। बट फर्स्ट क्लाइंट्स के भी कुछ कुछ चैलेंजेस आते हैं, जैसे कि कोई आपको भी लगेगा कि कोई क्यों काम करेगा मेरे साथ जब मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है। तो आप पहले तो आप पर्सनलाइज प्रपोजल्स भेजो, उनको एक पर्सनलाइज ऑडिट दो कि अगर मान लो सोशल मीडिया के लिए पिच कर रहे हो तो उनको एक ऑडिट दो कि आपके सोशल मीडिया में ये चीज अच्छी है बट ये चीज इंप्रूव हो सकती है। तो उनको समझ में आएगा अच्छा आपके पास है नॉलेज और आप उनके लिए काम कर सकते हो। और मे बी आप कंटेंट बनाओ अपने प्रोफाइल पे, उसके बाद लोगों को आउटरीच करो ताकि उससे भी आपकी एक्सपर्टीज रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। एंड थर्डली, हैव अ गुड प्रोसेस इन प्लेस। जब आप लोगों के साथ कॉल पे जाओ तो उनको बताओ कि आप कैसे काम करोगे। आप उनका पहले प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करोगे, फिर आप उनको ऑनबोर्डिंग फॉर्म भेजोगे,
हम वो प्रोसेस भी डिस्कस करेंगे। डे 3 में मैं आपको सारे प्रोसेसेस बताऊंगी जो आपके पास होने चाहिए। बट प्रोसेस देख के भी क्लाइंट्स कन्विंस होते हैं, बिकॉज उनको समझ में आता है दैट आप मजाक करने के लिए नहीं बैठे हो यहाँ पे, ठीक है। आप ये टेम्पलेट यूज कर सकते हो रीच आउट करने के लिए लोगों को। ये टेम्पलेट का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये भी आपको मिल जाएगा, तब आप इसका यूज करके लोगों को रीच आउट कर सकते हो टू गेट योर फर्स्ट फ्यू क्लाइंट्स, ठीक है। अब हमको लीड जनरेट करना शुरू करना है। तो दो टाइप के लीड्स होते हैं, इनबाउंड लीड्स, आउटबाउंड लीड्स। आपका पोर्टफोलियो बन गया। अब हम इनबाउंड लीड और आउटबाउंड लीड के बारे में बात करते हैं, ठीक है। इनबाउंड लीड्स होते हैं जो लोग आपको खुद से मैसेज करते हैं दैट हाय XYZ आई एम लुकिंग फॉर योर सर्विसेज। या दूसरे लोग जो आउटबाउंड होता है जिनको आप मैसेज करते हो दैट हे आई सॉ योर प्रोफाइल एंड आई वुड लव टू वर्क विद यू। जो भी आप उसको आउटबाउंड मैसेज बोलोगे उसको बोलते हैं कोल्ड DM या कोल्ड मैसेज। और आउटबाउंड तो वो क्लाइंट को आप मैसेज करो, इनबाउंड के केस में क्लाइंट आपको मैसेज करे। तो बेसिक डिफरेंस ये है दोनों का। आउटबाउंड हम कल कवर करेंगे, इनबाउंड हम आज कवर करेंगे, ठीक है। तो इनबाउंड कैसे आएगा, आपको लोग क्यों मैसेज करेंगे, कब मैसेज करेंगे, जब आपका कंटेंट देखेंगे लोग। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि आप अपने पर्सनल ब्रांड के थ्रू इनबाउंड लीड्स कैसे ला सकते हो, थ्रू इंस्टाग्राम एंड थ्रू लिंक्डइन, ठीक है। तो मैंने 2 साल पहले कंटेंट बनाना शुरू किया था एंड आज मेरे लिंक्डइन पे 26,000 फॉलोअर्स है, इंस्टाग्राम पे 40,000 फॉलोअर्स है, बिकॉज आई डिडंट गिव अप। तो पर्सनल ब्रांडिंग इज अगेन अ लॉन्ग टर्म जर्नी। आप 2 महीने करोगे एक्सपेक्ट करोगे कि सब कुछ हो जाए, तो वैसे नहीं होता, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम लिंक्डइन। कि आप अगर लिंक्डइन पे कंटेंट बनाना शुरू कर रहे हो तो उसके पहले आपको समझना पड़ेगा कि आपको क्यों कंटेंट बनाना है। व्हाट इज द एम ऑफ योर लिंक्डइन अकाउंट? इज इट टू अट्रैक्ट क्लाइंट्स? आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है? अगर क्लाइंट अट्रैक्ट करना है तो किसको अट्रैक्ट करना है? व्हाट डू यू वांट टू बी नोन फॉर ऑन लिंक्डइन? आपको किस बारे में बात करनी है ऑन लिंक्डइन? तो ये क्वेश्चंस आपको खुद से पूछने पड़ेंगे बिफोर यू स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट ऑन लिंक्डइन, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे आपको नीश चूज करनी है कि आप किस चीज के बारे में कंटेंट बनाओगे, ठीक है। तो नीश चूज करने के लिए अगेन दिस इज अ वेरी कॉमन इमेज दैट यू माइट हैव सीन, कि आपको क्या पसंद है, आप किस में अच्छे हो और लोग किसके लिए पैसा दे सकते हैं। उन तीनों को जब आप कंबाइन करते हो तो आपकी नीश समझ में आती है आपको, ठीक है ना। सेटिंग अप योर लिंक्डइन प्रोफाइल। अब हम आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल सेटअप करते हैं। हाउ टू सेटअप लिंक्डइन प्रोफाइल? तो आप लिंक्डइन जब बनाओगे तो पहला तो आपको अपना नाम डालना है। मेक श्योर आप कोई एरर नहीं करो नाम पे। योर नेम हैज बोथ द लेटर्स S and L कैपिटल, सो दैट्स लाइक इनिशियल शुड बी कैपिटल और बाकी सब स्मॉल। तो ये आपको पहले अपना नेम ऐड करना है, फिर आपको एक प्रोफाइल पिक्चर ऐड करनी है। तो आपका प्रोफाइल पिक्चर बेसिकली क्लियरली विजिबल होना चाहिए, जहाँ आपकी शक्ल क्लियरली विजिबल है, आप स्माइल कर रहे हो, इट शुड लुक अप्रोचेबल ताकि लोग आपको अप्रोच करें एंड इट शुड बी विजिबल। बहुत लोगों की प्रोफाइल पिक्चर मैंने देखा है कि वो इधर देख रहे हैं या नीचे देख रहे हैं या हेजी है, हमको वो सब नहीं करना है, ठीक है। सो दैट्स वन थिंग। नाउ कम द हेडलाइन। ये हो गया। अब हेडलाइन जब हम देखते हैं तो व्हाट इज अ हेडलाइन? हेडलाइन पे बेसिकली हमको कीवर्ड्स डालने होते हैं। कीवर्ड्स मैं बताती हूँ कीवर्ड्स क्या होते हैं। बट जैसे आप एक घोस्ट राइटर हो, आप सोशल मीडिया मार्केटर हो, तो आपको सोशल मीडिया मार्केटर डालना ही है। तो लिंक्डइन क्या करता है? लिंक्डइन एसईओ बेसिस पे काम करता है। तो बेसिकली होता क्या है कि मान लो आप आज अपनी हेडलाइन डाल रहे हो और कोई सर्च करेगा लिंक्डइन पर्सनल ब्रांडिंग स्ट्रैटेजिस्ट, तो उसको आपकी प्रोफाइल दिखेगी बिकॉज आपने वो लिख के डाला है वहाँ पे। दैट इज वाई कीवर्ड्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू लिंक्डइन। और हम हर सेक्शन में हमको कीवर्ड्स डालने हैं, नॉट जस्ट इन वन सेक्शन, हमको हर सेक्शन में कीवर्ड्स डालने हैं। आई विल टॉक अबाउट दैट ऑल्सो। पहले आता है हेडलाइन। तो हेडलाइन में आपको अपना ऑफर डालना है, जो मैंने भी आपको ऑफर बताया आप वो भी डाल सकते हो। आप नॉर्मल कीवर्ड्स डाल के भी छोड़ सकते हो। आपको थोड़े एग्जांपल्स देती हो तो आपको बेटर क्लैरिटी होगा। फोर्थ इज बैनर। जो आपका बैनर जाएगा, बैनर पे एक मिशन स्टेटमेंट जाएगा कि एग्जैक्टली आप लोगों के लिए क्या कर सकते हो। आप अपनी सर्विसेज भी लिस्ट डाउन कर सकते हो। आपने अगर बहुत फेमस क्लाइंट्स के साथ काम किया तो आप उनका लोगो भी डाल सकते हो क्रेडिबिलिटी बनाने के लिए। तो मैं आपको पहले बैनर और हेडलाइन के थोड़े एग्जांपल्स दिखाती हूँ। So let's start with this. Okay. So जैसे इसका है helping you build a captivating brand. तो ऐसे आप क्या करते हो? आपको वो लिखना है 23 मिलियन प्लस क्लाइंट इंप्रेशन, जिससे क्रेडिबिलिटी बिल्ड कर रही है। बट ये आपको नंबर लाने में टाइम लगेगा बिकॉज आप अभी शुरू करोगे। कितने क्लाइंट्स के साथ काम किया है? अगेन शी इज अ सोशल मीडिया मैनेजर, तो वो कीवर्ड इसने इंक्लूड किया है। शी इज ऑल्सो लिंक्डइन पर्सनल ब्रांडिंग स्ट्रैटेजिस्ट, तो उसने वो कीवर्ड भी इंक्लूड किया है। ऑर्गेनिक ग्रोथ, इंस्टाग्राम एक्सपर्ट, कॉपी राइटर, ये सब इसका कीवर्ड्स है, राइट। तो ऐसे ही और भी बहुत सारे लोग हैं। अब जैसे मान लो इसका कशिश का है।
तो यहाँ पे है नो नॉनसेंस जस्ट रिजल्ट्स, क्या क्या ये सर्विसेज है, और एक ये डीएम करो अगर आपको शुरू करना है। तो इसके कितने नंबर ऑफ क्लाइंट्स है उसने वो भी ऐड किया। Then she has here added generated $18K sales for brands through Instagram marketing, 150 clients globally, bringing results with no nonsense social media strategies, LinkedIn personal branding, social media marketing. इसमें ये डाला। ठीक है, अब अगर मैं आपको अपना दिखाऊं तो मैंने यहाँ पे अपने रिजल्ट्स डाले। वी हेल्प फाउंडर्स, कोचेस एंड पॉडकास्टर्स बिल्ड ROI ड्रिवन पर्सनल ब्रांड्स, जनरेटेड $5K फॉर अ क्लाइंट, personal branding strategist, Instagram strategist, organic growth, content marketing, working with Forbes 30 under 30 founders, UGC creator, social media manager, ghostwriter. मैंने यहाँ पे सारे कीवर्ड्स डाले। ऐसे आपको अपने नीश के लिए कीवर्ड रिसर्च करनी है कि लोग आपके नीश में क्या डाल रहे हैं, एंड ऐसा आपको एक बैनर क्रिएट करना है। आप बैनर सिंपली कैनवा से क्रिएट कर सकते हो। फिर आता है अबाउट अस। अब अबाउट अस में आपको क्या क्या इंक्लूड करना है? अबाउट अस में पहले आपको इंक्लूड करना है कि आप क्या करते हो, आप क्या लोगों के लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हो, आपकी एक्सपर्टीज क्या है, आपके अचीवमेंट्स क्या क्या है, और एक सीटीए। तो मैं आपको अगर इसका भी एग्जांपल दूं तो अबाउट अस को ना आप एक लैंडिंग पेज की तरह ट्रीट करो, जहाँ पे आप लोगों को A to Z सब बताओगे अपने बारे में। जहाँ पे जैसे मैंने पहले एक प्रॉब्लम इंट्रोड्यूस किया है कि सोशल मीडिया क्यों चाहिए लोगों को, फिर मैंने अपने बारे में इंक्लूड किया कि मैंने क्या क्या रिजल्ट लाए, कि मैंने अपने अकाउंट को ग्रो किया है, मेरे पास 2 साल का एक्सपीरियंस है और मैंने हर कुछ किया है सोशल मीडिया में। एंड देन आई टॉक टू, अगर आप कोई ऐसे इंसान हो जिसको सोशल मीडिया पे ग्रो करना है, जिसको रिजल्ट्स लाने हैं, तो आप ये कर सकते हो, मेरे साथ साइन अप कर सकते हो। सिमिलरली अगर मैं आपको इसका दिखाऊं, आप चैट जीपीटी का भी यूज कर सकते हो इसको लिखने में। मेक श्योर आप कॉपी पेस्ट नहीं करो, उसको ह्यूमनाइज करो, बिकॉज चैट जीपीटी का बहुत जो भी आता है कभी कभी लाइक रोबोटिक लैंग्वेज भी आता है जो क्लाइंट्स को समझ में आ जाएगा। जैसे इसने भी पहले प्रॉब्लम इंट्रोड्यूस किया है, आर यू ऑन द लुकआउट फॉर अ सोशल मीडिया मैनेजर, इफ यू नीड सम हेल्प टू बिल्ड योर पर्सनल ब्रांड यू कैन काउंट ऑन मी, आई एम दिस। उसने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया। फिर उसने भी यही बोला, इफ यू आर समवन जो ये चीजें नहीं कर पा रहा है, आई कैन हेल्प यू विद क्या क्या वो कर सकती है, तो सेंड मी अ डीएम एंड लेट्स स्टार्ट अबाउट, राइट। तो अबाउट अस में आपको यही करना है, आपको पहले प्रॉब्लम इंट्रोड्यूस करनी है, फिर खुद को इंट्रोड्यूस करना है, फिर पूछना है क्लाइंट से कि आप ये चाहिए आपको, तो ये मैं ऑफर कर सकती हूँ, फिर अपने सर्विसेज के बारे में बताना है, और फिर एक सीटीए देना है। सीटीए का मतलब होता है कॉल टू एक्शन। ठीक है, तो पहले होता है अबाउट सेक्शन। अब अबाउट हो गया, उसके बाद आता है एक्सपीरियंस सेक्शन। तो आपने अगर कहीं पे भी आज तक इंटर्नशिप की है, आपने कुछ भी सर्टिफिकेशन किया है, तो सब कुछ आप अपने एक्सपीरियंस सेक्शन के अंदर ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये लिंक्डइन पर्सनल ब्रांडिंग करती है, तो उसने वो ऐड किया है, और यहाँ पे उसने पूरा ऐड किया है कि वो लिंक्डइन पर्सनल ब्रांडिंग के अंदर क्या क्या करती है। तो यहाँ पे एक तो उसने कीवर्ड्स ऐड कर दिए बहुत सारे, पर्सनल ब्रांडिंग, लिंक्डइन, जनरेट लीड्स, थॉट लीडरशिप, 10x ग्रोथ। तो ये सब से ना लोग जब सर्च कर रहे हैं तो उसका प्रोफाइल स्टैंड करेगा, दिखेगा सर्च में, जब मैं सर्च करी तो आएगा वो, वरना बहुत बार नहीं आएगा बिकॉज आपने कीवर्ड्स नहीं डाल, राइट। ठीक है, जैसे इसने ई कॉमर्स में काम किया था तो इसने यहाँ पे सब कुछ ऐड कर दिया, इसने यहाँ पर काम किया था कॉफी मीडिया में तो वहाँ पे उसने सब कुछ ऐड किया। तो ऐसे आपको डिस्क्राइब करना है कि आपने वहाँ पे क्या क्या किया था, और जितने कीवर्ड्स पॉसिबल है उतने कीवर्ड्स डालने। जैसे अगर आप इसका बैनर देखोगे तो इसका बैनर भी बहुत अच्छा, तो आपको रिसर्च करके फिर अपना एक क्रिएट करना है, बेसिकली सिंपल है। एक्सपीरियंस सेक्शन हो गया। अब हो गया क्या, अपना एक पर्सनलाइज यूआरएल बना सकते हो। क्यों एक पर्सनलाइज यूआरएल बनाना, बिकॉज लोग आपको जब मांगे तो इट्स इजियर टू शेयर एंड रीड। ठीक है, अब आता है फीचर्ड सेक्शन। तो आपको फीचर्ड सेक्शन में क्या क्या करना है? फीचर्ड सेक्शन में आप अपना पोर्टफोलियो डाल सकते हो, आप अपना कैलेंडली लिंक बना के डाल सकते हो, जिससे क्लाइंट्स आपके साथ फ्री कॉल्स बुक कर सके जब उनको काम करना है। तो जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, फॉर्म कैसे बनाना है वो हम डिस्कस करेंगे। जैसे देखो, इसने अपना फॉर्म ऐड कर रखा है, एजेंसी हायरिंग कॉल। फिर इसने अपना ऐड किया है माय रिजल्ट्स, उसके जो भी रिजल्ट्स है सर्विसेज के वो। उसके बाद बुक अ कंसल्टेशन कॉल, अगर आपके भी कंसल्टेशन कॉल से आप वो भी डाल सकते हो। इसका न्यूज़लेटर है तो इसने अपना न्यूज़लेटर ऐड किया। बाकी आप यहाँ पे अपना पोर्टफोलियो और कॉल का एक फ्री कॉल का लिंक, ताकि क्लाइंट्स कॉल बुक कर सके, वो तो मस्ट है। ठीक है, ये दो चीजें आपको करनी। तो हमने लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन समझ लिया कि कैसे करते हैं। ठीक है, अब लिंक्डइन पे कंटेंट कैसे लिखते हैं, तो मैं ये 9 स्टेप गाइड फॉलो करती हूँ। इंस्पिरेशन, रिसर्च, गैदर एसेट्स, एंगल, आउटलाइन, बॉडी, कंक्लूजन, हुक और एडिट। मैं आपके साथ ये पूरा डिस्क्राइब करती हूँ। ठीक है, पहला है इंस्पिरेशन।
आपको आइडियाज नेचुरली तो आएंगे नहीं। आइडियाज कैसे आएंगे? जब आप कंटेंट कंज्यूम करोगे ऑन ट्विटर, ऑन लिंक्डइन, ऑन इंस्टाग्राम, ऑन ब्लॉग्स, ऑन यूट्यूब और रेडिट। और कभी कभी क्या होता है, जैसे मैंने अभी सेशन लिया, सेशन में आपने मुझे इससे कोई क्वेश्चन पूछ लिया जिसका मैं बहुत लोगों को डाउट होगा और मैं उन लोगों को भी हेल्प कर सकती हूँ, तो दैट कैन बिकम माई कॉन्टेंट। या फिर मैं अभी मान लो स्टारबक्स पे कॉफी पी थी और कुछ मेरे को उससे आइडिया आ गया कि अच्छा हाँ मैं इस पे कंटेंट बना सकती हूँ। तो मेरे रैंडम थॉट्स जो होते हैं ना, या फिर मैं कोई ट्रिप पे गई उस पे, तो वो एक्सपीरियंसेस, रैंडम थॉट्स भी हमारे कंटेंट आइडियाज बन सकते हैं। तो जब आप कंटेंट क्रिएट करने लग जाते हो तो आपको समझ में आता है कि आप हर चीज को एक कंटेंट के नजर से देखने लगते हो, राइट? सो ऑलवेज कीप लाइक योर नोट्स हैंडी, ताकि आप वहाँ पे अपने आइडियाज राइट डाउन कर सको, क्योंकि हम आइडियाज भूल जाते हैं बाद में। अब जब आपके पास आइडिया है, मान लो आपको किसी कंपनी का आईपीओ आ रहा है, उस पर आपको कंटेंट लिखना है, तो आप रिसर्च करोगे, राइट, कि क्या उस कंपनी की जर्नी है और तो आप रिसर्च कर सकते हो यूट्यूब से, चैट जीपीटी से, गूगल से, जेमिनाई बोल के जो बार्ड गूगल का प्लेटफॉर्म है वहां से, वो काफी अच्छी रिसर्च हो जाती है वहां से। आई डू अ लॉट ऑफ रिसर्च फ्रॉम देयर। फिर अब आपको उसके लिए जो भी लिंक चाहिए, सोर्स चाहिए, फोटोज चाहिए, क्योंकि लिंक्डइन आजकल पिक्चर बेस्ड कंटेंट पे काम कर रहा है, तो वो आपको ऐड करने हैं, वो आपको ढूंढ के एक जगह पे क्रिएट करके रखने हैं। फिर आता है एंगल। तो अब एक पोस्ट को लिखने के मल्टीपल एंगल्स हो सकते हैं। तो अब मान लो मेरे को अगर अपना कंसल्टेशन कॉल प्रमोट करना है अपने लिंक्डइन पोस्ट के थ्रू, तो मैं इसके थ्रू भी कर सकती हूँ कि यार लास्ट महीने मैंने इतने पैसे कमाए, अगर तुमको भी ऐसे लर्न करना है तो मुझको कंसल्टेशन कॉल। या ये भी एक तरीका हो सकता है कि मैं बताऊं कि मैंने ये वर्कशॉप ली थी, अगर तुमने ये वर्कशॉप मिस कर दी है तो तुम मेरे साथ एक कंसल्टेशन कॉल भी बुक कर सकते हो। तो एक पोस्ट को लिखने के, एक टॉपिक पे लिखने के मल्टीपल एंगल्स हो सकते हैं, राइट? तो आपको एक एंगल चूज करना है कि अच्छा मैं किस एंगल में लिखने वाला हूँ ये पोस्ट, ठीक है? अब आपको एक आउटलाइन क्रिएट करनी है कि मैं उस पोस्ट के अंदर क्या क्या लिखूंगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कि मुझे अगर अपना गोल है, मेरा अपना कंसल्टेशन कॉल प्रमोट करना है, तो पहले मेरे को एक हुक लिखनी है ताकि उनका लोग जिनको मैं टारगेट कर रही हूँ उनका अटेंशन कैप्चर हो। फिर मेरे को नंबर्स डालने, क्योंकि लोग यहाँ पे अगर मेरे बारे में मेरे रिजल्ट्स नहीं देखेंगे तो मेरे से कंसल्टेशन कॉल नहीं बुक करेंगे। फिर मेरे को प्रॉब्लम बतानी है कि मेरी कंसल्टेशन क्या प्रॉब्लम सॉल्व करती है, फिर मुझे सोल्यूशन देना है, और फिर एक कॉल टू एक्शन डालना है। तो मैंने लिखा, क्रेडिबिलिटी, नंबर्स डाले यहाँ पे सारे, फिर मैंने हुक लिखा, सोल्यूशन दिया, और फिर प्रॉब्लम को और एजिटेट किया। फिर मैंने अश्योरेंस दी कि तुम अगर मेरे साथ कंसल्टेशन लोगे तो तुम ये कर पाओ। फिर मैंने एक सीट ये दे दिया। तो हुक हुक तो अगेन हुक वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये हुक क्यों काम किया? क्योंकि यहाँ पे मैंने अपना नंबर लिखा है कि आई मेड माई फर्स्ट $10K ARR इन 2022 while being in the first year of college। तो ये हुक बहुत लोगों के साथ रिलेट किया। अब जब आपने पूरा पोस्ट लिख लिया है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एडिट। गुड राइटिंग ओनली हैपेंस व्हेन यू एडिट योर पोस्ट मल्टीपल टाइम। तो ये मेरा फाइनल पोस्ट था। तो अगर आप देखोगे तो पहले मैंने हुक लिखा, उसके बाद मैंने क्रेडिबिलिटी बिल्ड की, जैसे मैंने एग्जैक्ट आउटलाइन बनाया था मैंने उस आउटलाइन को फॉलो करके ये पोस्ट लिखा। तो आप लिखते लिखते परफेक्ट हो गए। आप मेरे शुरू के पोस्ट देखोगे लिंक्डइन पे तो मैं डम्ब जैसे पोस्ट लिखती थी, पर अभी के पोस्ट ऑफकोर्स इंप्रूव हो गए, बिकॉज आप जितना लिखोगे उतनी आपकी राइटिंग इंप्रूव होती है। दैट्स व्हाई आई रिकमेंड एवरीबॉडी टू राइट ऑन लिंक्डइन। ठीक है? अब लिंक्डइन पे सिर्फ कंटेंट बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम कंटेंट स्ट्रैटेजी भी डिस्कस करेंगे आगे, बट लिंक्डइन पे सिर्फ कंटेंट बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, लिंक्डइन पे इट्स आल्सो इंपॉर्टेंट टू एंगेज। अब जितना एंगेज करोगे लोगों के साथ उतनी आपकी प्रोफाइल की रीच बढ़ती है। सो you will engage with your first degree connections, you will engage with your second degree connection and third degree connection। अब first second third degree होता क्या? तो अगर मान लो किसी एक का नाम लेती हूँ मैं यहाँ से, अगर मान लो मैं कृष्णा के साथ कनेक्टेड हूँ, मैं कृष्णा को फॉलो करती हूँ, कृष्णा मुझे फॉलो करता है, हम दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, तो जो कृष्णा से कनेक्टेड है वो मेरे सेकंड डिग्री कनेक्शन से, मतलब मैं कृष्णा से कनेक्टेड हूँ, बट कृष्णा से जो कनेक्टेड है दोज आर माय सेकंड डिग्री कनेक्शन। तो अगर कृष्णा मेरा पोस्ट लाइक करता है तो वो उसके सेकंड डिग्री कनेक्शन के उस पे आता है फीड पे कि कृष्णा लाइक श्रुति लोहारीवाल कंटेंट, तो मुझे वहां से भी रीच मिलेगी। मुझे उसके जो मुझे फॉलो नहीं करते कृष्णा के फॉलोअर्स, उससे भी मुझे रीच मिलेगी। तो लिंक्डइन ऐसे काम करता है। ठीक है? तो आपको कैसे एंगेज करना है, दो तरीके होते हैं लिंक्डइन पे एंगेज करने के, एक होता है कमेंट, दूसरा होता है डीएम। तो हम पहले कमेंट्स डिस्कस करते हैं। तो कमेंट्स में आप क्या क्या कर सकते हो? आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, आप नॉर्मल थैंक यू और गुड पोस्ट और ग्रेट पोस्ट ये सब मत करो, अच्छे वैल्यू एडिंग कमेंट्स करो, ताकि लोग आपके कमेंट्स लोगों का अटेंशन कैप्चर कर पाए और आपकी प्रोफाइल जाके वो चेक करो। कमेंट्स का गोल ही यही होता है। पहला आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, आप अपना कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है उस पोस्ट से रिलेटेड वो ऐड कर सकते हो, आप कमेंट में वैल्यू ऐड कर सकते हो कि तुमने उसने ये बताया तो आप कुछ और भी टिप्स दे दो वहाँ पे। आप डिसअग्री भी कर सकते हो, अगर किसी ने लिखा आप कोई पॉइंट से डिसअग्री करते हो आप डिसअग्री भी कर सकते हो। ठीक है? अब जो कंटेंट स्ट्रैटेजी में फॉलो करती हूँ लिंक्डइन पे, मैं आपको वो बताती हूँ ताकि आपको इनबाउंड लीड्स आना शुरू हो। ठीक है? तो बेसिकली व्हाट आई डू इज देयर इज 3 पिलर्स आई ब्रेक माय कंटेंट। टॉप ऑफ द फनल,
मिडिल ऑफ द फनल, बॉटम ऑफ द फनल, ठीक है। सॉरी। अब टॉप ऑफ द फनल कंटेंट क्या होता है? टॉप ऑफ द फनल कंटेंट होता है वो जहां आप पर्सनल स्टोरीज डालोगे जो मास ऑडियंस के साथ रिलेट करता है, जो हर किसी के लिए रेलेवेंट है। जैसे मान लो आपने सोलो ट्रिप ली, सोलो ट्रिप हर इंसान के साथ रेलेवेंट होगा। मैंने अगर अपना फर्स्ट मैकबुक खरीदा तो वो हर इंसान के साथ रेलेवेंट होगा। तो बेसिकली आपके लाइफ अपडेट्स, आपके पर्सनल स्टोरीज या फिर कोई ट्रेंडिंग कंटेंट, बेसिकली अगर चैट जीपीटी लॉन्च हुआ तो हर इंसान उसके बारे में बात करेगा, राइट? तो वैसे कंटेंट जो आपको लार्ज ऑडियंस तक पहुंचने में हेल्प कर सकते हैं वो होता है टॉप ऑफ द फनल, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल्स भी दूंगी। ये हो गया टॉप ऑफ द फनल। तो आपको 1000 लोग आए टॉप ऑफ द फनल कंटेंट से आपके पेज पे। अब मिडिल ऑफ द फनल कंटेंट, मिडिल ऑफ द फनल कंटेंट में आप सिर्फ अपनी नीश के बारे में बात करते हो, जो आप सर्विस देते हो। मान लो अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विस देते हो तो आप सिर्फ सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में बात करोगे, टिप्स दोगे लोगों को, हैक्स दोगे, इंडस्ट्री में क्या चल रहा है उसके बारे में बात करोगे। ये हो गया मिडिल ऑफ द फनल। तो ये 1000 लोग में से मान लो 300 लोग हैं जो सोशल मीडिया मार्केटिंग करना चाहते हैं या फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज लेना चाहते हैं आपसे, वो ये कंटेंट पढ़ेंगे और एंगेज करेंगे। अब आता है बॉटम ऑफ द फनल कंटेंट। यहाँ पे आप अपने क्लाइंट रिजल्ट्स डालोगे, अपने प्रोसेसेस डालोगे, लीड मैग्नेट्स डालोगे। तो लीड मैग्नेट क्या होता है? आप फ्री रिसोर्सेज देते हो ताकि आप क्लाइंट्स को अट्रैक्ट कर सको, राइट? तो आप वो डालोगे, आप अपने क्लाइंट के टेस्टिमोनियल्स डालोगे। तो ये सब से जो 300 लोग में से 100 लोग हैं जो आपकी सर्विसेज लेने में इंटरेस्टेड है, वो ये देख के आपको रीच आउट करेंगे। तो ये पूरा फनल है। अगर आप देखोगे तो यहाँ 1000 लोग आए, 300 लोग बचे, उसमें से 100 लोगों ने आपको मैसेज किया, मान लो 2 लोग कन्वर्ट हुए। तो ये पूरा प्रोसेस है जिससे आप इनबाउंड लीड्स ला सकते हो। मैं आपको एग्जांपल्स भी देती हूँ थोड़े पोस्ट के, ठीक है। अब आप कंटेंट बनाना अगर लिंक्डइन पे आज शुरू कर रहे हो तो मैं आपको बोलूंगी आप हफ्ते में 4 टॉप ऑफ द फनल कंटेंट करो और 1 मिडिल ऑफ द फनल कंटेंट करो। जब आपकी फॉलोवर बेस थोड़ी बढ़ जाएगी, 1000-2000 फॉलोअर्स हो जाएंगे, आपको एंगेजमेंट आने लगेगी आपके पोस्ट में, तो आप 2 टॉप ऑफ द फनल करो, 2 मिडिल ऑफ द फनल करो, 1 बॉटम ऑफ द फनल करो। क्योंकि आप जब बिगिनर हो, आपके पास ज्यादा रिजल्ट्स नहीं है बात करने के लिए, तो आप बॉटम ऑफ द फनल कम करो एंड बॉटम ऑफ द फनल में अपने प्रोसेसेस के बारे में बात करो। अगर रिजल्ट्स नहीं भी है तो, या खुद के प्रोफाइल के लिए जो रिजल्ट्स ला रहे हैं उस पर बात करो। तो जैसे मैं आपको दिखाऊं, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूं। चलो मैं इसका एग्जांपल देती हूँ। तो तो ये हो गया बॉटम ऑफ द फनल, जहां पे इसने बोला कि 10,000 पीपल ऑन 20 डेज कैसे इसने अचीव किया, ठीक है। टेकिंग क्लाइंट्स में ब्लॉक बुक स्लॉट नाउ। तो ये हो गया इसका बॉटम ऑफ द फनल, जहाँ पे डायरेक्टली बोल रही है कि मैंने ये रिजल्ट लाया, अगर तुमको लाना है तो बुक कर लो कॉल, ठीक है। अब अगर मैं आपको टॉप ऑफ द फनल कंटेंट का एग्जांपल दूं, एक फिर मैं आपको टॉप ऑफ द फनल कंटेंट का एग्जांपल दूं, तो जैसे ये एक पोस्ट है कि आई कम टू देहरादून फॉर अ वेकेशन बट बिफोर लिविंग आई वाज सुपर स्ट्रेस्ड। तो ये टॉप ऑफ द फनल कंटेंट हो कि वो अपने लाइफ के बारे में आपको बता रही है और आप इंटरेस्टेड हो जानने के लिए, राइट? तो अब ये हो गया मिडिल ऑफ द फनल कंटेंट, जहाँ पे वो वैल्यू दे रही है। एंड बॉटम ऑफ द फनल कंटेंट जैसे ये, अब इसमें इसने बताया कि मेरे पोस्ट पे 230 कमेंट्स आए, तो ये हो गया बॉटम ऑफ द फनल। तो जिसको इससे सर्विसेज लेनी है उसको इंटरेस्टिंग लगेगा ना ये कि अच्छा इसके पोस्ट पे 230 कमेंट्स आए तो मुझे भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ये 3 ऐसे ब्रेक आप कर सकते हो। मैं आपको और एग्जांपल देती हूँ। चलो अब आप लोग मुझे बताओगे ताकि मेरे को समझ में आए कि कितना किसको समझ में आया है यहाँ पे, या मैं कब से ऐसे बातें कर रही हूँ। Okay, tell me which type of content is this? Is this bottom of the funnel? Is it middle of the funnel? Is it top of the funnel? ये कौन सा content piece है? Reply everybody on the chat. Very correct. ये बॉटम ऑफ द फनल कंटेंट है, बिकॉज यहाँ पे उसने अपना रिजल्ट दिखाया है कि उसके क्लाइंट को 15,000 ऑर्डर्स आए फ्रॉम अ वायरल रील, ठीक है। अब ये कौन सा कंटेंट है? 5 truths every woman needs to know. Today is last day of Navratri and I need to share this post. वेरी गुड, दिस इज टॉप ऑफ द फनल बिकॉज नवरात्रि इज अ टॉपिक जो बहुत लोग रिलेट कर पाएंगे, राइट? तो ये टॉप ऑफ द फनल कंटेंट हो गया, ओके। एंड ये कौन सा कंटेंट है? स्टॉप पोस्टिंग कॉमन सेंस कंटेंट। व्हाट डू आई एग्जैक्टली मीन बाय दिस? वेरी गुड, दिस इज मिडिल ऑफ द फनल कंटेंट बिकॉज ये एडवाइस दे रही है या टिप्स दे रही है।
I'm so happy that everybody has understood. तो अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आप ज्यादा टॉप ऑफ द फनल कंटेंट बनाओगे, बिकॉज आप देखोगे कि उस पर रीच ज्यादा आती है. मिडिल ऑफ द फनल कंटेंट में रीच कम आएगी, पर उससे आपको क्लाइंट्स मिलेंगे, तो वो भी इंपॉर्टेंट है. तो थोड़े टाइम के बाद जब आपकी रीच बढ़ जाए तो आप मिडिल ऑफ द फनल भी इंक्लूड करो. 4 टॉप ऑफ द फनल, 1 मिडिल ऑफ द फनल फॉर बिगिनर्स जिनकी ऑलरेडी लिंक्डइन प्रोफाइल एक्टिव है या फिर एक्टिव हो जाएगी आफ्टर अ फ्यू टाइम्स. तो आप 2 टॉप ऑफ द फनल, 2 मिडिल ऑफ द फनल, 1 बॉटम ऑफ द फनल डालोगे. क्लियर? एवरीबॉडी हैज अंडरस्टूड कि लिंक्डइन पे कंटेंट कैसे बनाना है. इज इट क्लियर विद एवरीबॉडी? गिव मी अ थम्स अप इन द चैट अगर सबको कॉन्फिडेंस आ गया है अभी. ग्रेट. ओके, नाउ आप लीड्स कैसे जनरेट कर सकते हो लिंक्डइन पे. पहला है या आप डायरेक्ट पिच कर सकते हो अपने सर्विसेज में. ये मैं आपको एक प्रोसेस दिखाती हूँ. मान लो आपकी टारगेट ऑडियंस है कोचेस. कोच, आपने कोच सर्च किया लिंक्डइन पे. अब आप क्या करोगे, आप यहाँ पे ऑल फिल्टर्स में जाओगे. आप पहले तो पीपल में जाओगे, उसके बाद आप ऑल फिल्टर्स में जाओगे. अब जब ऑल फिल्टर्स में जाओगे ना, तो यहाँ पे आप ऐड अ क्रिएटर या ऐड अ कनेक्शन का ऑप्शन आएगा. गो टू ऐड अ क्रिएटर, और यहाँ पर आप मान लो आपने मेरा नाम डाल दिया कि जो, अब क्योंकि मैं कोचेस को टारगेट करती हूँ तो आप मेरे फॉलोअर्स या मेरे कनेक्शंस को स्टील कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि वो कोचेस इंटरेस्टेड होंगे पर्सनल ब्रांडिंग में अगर वो मुझसे कनेक्टेड है, तो बिकॉज मैं पर्सनल ब्रांडिंग ऑफर करती हूँ, राइट. तो आप मेरे कनेक्शंस बेसिकली स्टील करोगे ये प्रोसेस में. हाँ, तो अभी आपको इतने सारे कोचेस मिल जाएंगे जिनको आप मैसेज कर सकते हो. ऑनलाइन फिटनेस कोच, इतने सारे कोचेस आपको मिलेंगे जो मेरे से कनेक्टेड है और जो इस सर्विस में ऑलरेडी इंटरेस्टेड है, राइट. तो एक ये तरीका है जो आप यूज कर सकते हो. आप यहाँ पे किसी भी क्रिएटर का नाम डाल सकते हो जिसमें जो आपको लगता है इसके प्रोफाइल में तो बहुत सारे मेरे टारगेट ऑडियंस के लोग हैं. ठीक है. दूसरा होता है पैसिव पिक्चर सर्विसेज. तो बेसिकली आप ऑफ कोर्स अपना कंटेंट में जब आप लिखो, तो जैसे उसने लिखा था कि बुक अ कॉल, वो हमेशा डाल दो. आई एम लुकिंग फॉर क्लाइंट्स, 3 क्लाइंट्स इन मे टू हेल्प देम ग्रो देयर पर्सनल ब्रांड. वैसे डाल दो, तो इसको पैसिव पिक्चर सर्विस बोलते हैं. उसके बाद इनडायरेक्ट पिचिंग, गिव लीड मैग्नेट. तो अगर मैं आपको लीड मैग्नेट का एक एग्जांपल दूं, तो ये एक लीड मैग्नेट पोस्ट का एग्जांपल है. जहाँ पे इसने लिखा है, if you want to see the exact ad that got us this result, just comment UGC and I will send it to you. तो ये जब एड्स भेजेगा तो लोग काफी ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे टू सी द एड, राइट. एंड हो सकता है वो एड पसंद आ जाए, वो उसके क्लाइंट बन जाए. तो ये एक तरीका है जिसके थ्रू आप लीड जनरेट कर सकते हो. ठीक है. फिर आप जब भी आप क्लाइंट्स ले रहे हो तो आप अनाउंस कर दो. जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, इफ यू आर एन एजेंसी ओनर लुकिंग टू जनरेट 12 लीड्स एवरी वीक फ्रॉम लिंक्डइन, शूट मी अ डीएम. तो क्लियरली बोलो कि मैं क्लाइंट्स ले रही हूँ, किसी को इंटरेस्टेड है तो आ जाओ. डन. अभी लिंक्डइन एवरीबॉडी इज क्लियर, तो आई विल स्टार्ट विद इंस्टाग्राम. ओके, ठीक है. अभी वी विल स्टार्ट विद इंस्टाग्राम, कि इंस्टाग्राम पे कैसे ग्रो करना है. पहला तो अपने लिए एक नीश डिसाइड करो. इंस्टाग्राम एक बहुत नीश प्लेटफॉर्म है. अगर वहाँ पे आप एक चीज के बारे में सिर्फ नहीं बात कर रहे हो तो लोग आपको फॉलो नहीं करेंगे. वहाँ पे मेमोरेबिलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्रिएट करना. तो आप एक चीज सिलेक्ट करो जिसके बारे में आप बात करोगे. इट कैन बी पर्सनल ब्रांडिंग, इट कैन बी सोशल मीडिया, इट कैन बी रील्स, इट कैन बी इंस्टाग्राम इटसेल्फ, कुछ भी जो आपकी नीश है बेसिकली. उसके बाद आप एक कंटेंट फॉर्मेट डिसाइड करो जिसके साथ आप 30 डेज या 60 डेज तक एटलीस्ट स्टिक करोगे. अब व्हाट डू आई मीन बाय कंटेंट फॉर्मेट? एक सर्टेन स्टाइल ऑफ एडिटिंग, एक सर्टेन स्टाइल ऑफ शूटिंग. अगर आप बहुत सारे छोटे छोटे वीडियोस को कंपाइल करके रील्स बनाना चाह रहे हो, अगर आप वॉइस ओवर करना चाह रहे हो, तो एक स्टाइल ऑफ फॉर्मेट पे स्टिक करो फॉर द नेक्स्ट 60 डेज. आपका प्रोफाइल एकदम सिमिलर लगना चाहिए. जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूं, अगर लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल. ठीक है. तो अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं तो okay, तो अगर मैं इसका एग्जांपल दूं आपको, तो शी वाज एट 600, नाउ शी हैज वेंट टू 4000. तो ये जितने भी रील्स बनाती है इसके मोस्टली वॉइस ओवर होते हैं. अगर आप देखोगे ये छोटे छोटे वीडियोस को उठा के बस वॉइस ओवर पे डाल देती है. जैसे अब देखोगे मल्टीपल वीडियोस है, उसके बाद इसने बस वॉइस ओवर कर दिया. जैसे ये भी, ये थोड़ा एक दो टॉकिंग क्लिप्स रहते हैं बट बहुत ज्यादातर वॉइस ओवर रहते हैं. ठीक है. तो इसका शूटिंग का फॉर्मेट इज वेरी सिमिलर. जैसे ये हमेशा कैमरा के सामने एक चीज बोलती है आके, उसके बाद ये पूरा वॉइस ओवर पे करती है चीजें. ठीक है. तो ये एक फॉर्मेट है.
अगर मैं आपको दूसरा फॉर्मेट दिखाऊं, अगर आप इसका देखो तो इसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है जो मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ, आप ये रील के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे, सिर्फ फोटोज डिफरेंट है, बट अगर आप देखोगे तो एक पर्टिकुलर पैटर्न है, जिस तरीके से अपने थंबनेल्स बनाता है, जिस तरीके से इसके एक पैटर्न आपको सब में दिखेगा। जैसे अगर आप देखोगे फ्रॉम स्क्रैच, एक पैटर्न है इसके फॉन्ट्स का, तो आपको एक ऐसा पैटर्न फिगर आउट करना है। जैसे ये यहीं पे बैठ के वीडियो बनाता है, इसका यही फॉन्ट है, देखो। तो आपको ऐसा एक पैटर्न फॉलो करना है फॉर द नेक्स्ट 60 days। आप अपने हिसाब से पैटर्न चूज कर सकते हो। आपको चाहिए तो आप सिर्फ बी रोल्स भी बना सकते हो। अगर मैं आपको एक एक बंदे का और दिखाऊं, ये है शायद, हाँ, फिर मैं आपको इसका दिखाऊं, तो इसका पैटर्न देखो कि हमेशा ऐसे स्क्वायर में इसका वीडियो रहता है और ऐसे ही टेक्स्ट आ रहे होते हैं हर वीडियो में, ये देखो, राइट। तो आपको अपने लिए कैसा पैटर्न सिलेक्ट करना है और उसे स्टिक करना है फॉर द नेक्स्ट 60 days एटलीस्ट, चाहे वो वर्क करे नहीं करे। सेकेंडली, जो आपको देखना है कि इंस्टाग्राम पे अभी कौन सा स्टाइल ऑफ वीडियोस अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो अभी मेरे अकॉर्डिंग जो परफॉर्म कर रहा है वो है बी रोल्स, जहाँ पे आपका एक स्टिल वीडियो है, उस पर टेक्स्ट आता है और रीड द कैप्शन आता है बाकी। या फिर जहाँ आप कैमरा की तरफ देख के नहीं, बट ऐसा साइड आप बात कर रहे हो और मैं आपको शूट कर रही हूँ, ऐसा वाला वीडियो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। या फिर वॉइस ओवर कॉन्टेंट अच्छा परफॉर्म कर रहा है और उसमें बिल्कुल कम एडिटिंग वाला कंटेंट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आप जितना रॉ और ऑथेंटिक रख सकते हो अपने कंटेंट को, उतना रॉ और ऑथेंटिक रखो, ठीक है। ओके, नाउ आपको अपनी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करनी है। आपको अपना नाम और आप क्या करते हो, कॉपी राइटर, सोशल मीडिया मैनेजर, जैसे मैंने अभी आपको उसका दिखाया सौम्या का, तो उसने क्या लिखा था वहां पे, जैसे यहाँ पे इसने लिखा फिटनेस एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट, उसकी नीश ये है, तो उसने अपना नाम लिखा है, उसके बाद उसने फिटनेस एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट लिखा, ताकि जब लोग सर्च करें तो ही कैन कम इन। जैसे आप यहाँ पे देखोगे इसने सोशल मीडिया मैनेजमेंट एंड पर्सनल ब्रांडिंग लिखा है, ठीक है। उसके बाद अगेन लिंक्डइन पे जैसे हमने एक कीवर्ड वाला लिखा, हेडलाइन लिखा, आपको वो लिखना है, और एक सीटीए डालना है, डीएम टू वर्क विथ मी, या जो भी आपका सीटीए है, कॉल टू एक्शन, आपको वो डालना है। तो आप अपना हेल्पिंग स्टेटमेंट ऐसे बना सकते हो इस फॉर्मूला से। हेल्पिंग आपका जो भी टारगेट ऑडियंस है, हेल्पिंग कोचेस अचीव 5K फॉलोअर्स in 30 days through Instagram growth services, कुछ ऐसा। तो आप ऐसा एक हेल्पिंग स्टेटमेंट बना के अपने बायो में डाल सकते हो। उसके बाद एक कॉल टू एक्शन डाल सकते हो। जब आप बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ काम कर लोगे तो आप अपने अचीवमेंट डाल सकते हो कि वर्क विद 150 क्लाइंट्स, वर्क विद 50 क्लाइंट्स। आप किन टॉपिक्स के ऊपर रील बनाते हो, जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग, पर्सनल ब्रांडिंग, आप वो डाल सकते हो। डिपेंड्स ऑन यू, बट दीज आर मल्टीपल वेज ऑफ ऑप्टिमाइजिंग योर प्रोफाइल। अब आता है हाइलाइट्स। कौन कौन से हाइलाइट्स आपको स्पेसिफिकली अपने प्रोफाइल में रखना है। पहला है अबाउट मी, ताकि जो भी आपके पेज में आए वो स्क्रैच से आपकी जर्नी को समझ सके। दूसरा है एफएक्यू, जो आपकी सर्विस के बारे में लोग बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं कि रिजल्ट्स कितने दिन में आएंगे, क्या सर्विस ऑफर करते हो, क्या इंक्लूडेड होता है, वो सब कुछ। उसके बाद आता है टेस्टिमोनियल्स और रिजल्ट। आपको जो रिजल्ट और टेस्टिमोनियल का हाईलाइट है आपको वो रखना है, ठीक है। आप अगर एक बिगनर हो, मैं रिकमेंड करूंगी आप 5 times a week एटलीस्ट पोस्ट करो। अगर पॉसिबल है दिन में 2 बार पोस्ट करना, वो भी करो, बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट। नाउ फोकस ऑन बिल्डिंग अ कोहेसिव फीड। जैसे मैंने आपको अक्षत का दिखाया कि उसके एक वीडियो और दूसरे वीडियो के बीच में डिफरेंशिएशन नहीं लग रहा, आप उस पर फोकस करो कि फीड एकदम सिमिलर दिखे, ताकि लोग याद रख पाए कि अच्छा येलो फॉन्ट है मतलब ये इसका ही वीडियो है, या ये स्टाइल ऑफ वीडियो है मतलब श्रुति का वीडियो, तो वो कंटेंट लोगों के दिमाग में छप जाता है। सेकेंड थिंग, मेक श्योर कि 30 सेकेंड्स के अंदर, 40 सेकेंड्स के अंदर आप अपने वीडियोस को खत्म करो, और आपके हुक्स बहुत स्ट्रॉन्ग और रिलेटेबल होने चाहिए आपके ऑडियंस के लिए। बहुत कैची हुक्स रखने की कोशिश करो, ठीक है। नाउ कम्स द कंटेंट। सम टाइप्स ऑफ कंटेंट जो काफी काम करते हैं रिसोर्सेज, 5 YouTube चैनल, 3 बुक्स, चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट्स, कोर्सेस, ये सब जो टेड टॉक्स, ये रिसोर्सेज ना बहुत ज्यादा अच्छे परफॉर्म करते हैं, बिकॉज एवरीबडी लव्स टू गेट रिसोर्सेज। सेकंड, ओपिनियन बेस्ड कंटेंट। जैसे मैंने बोल दिया कि मुझे फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स लाइक अपवर्क और फाइवर पसंद नहीं, तो ऐसा, तो ये ओपिनियन बेस्ड कंटेंट, ये आपसे ओरिजिनल होता है, लोग अग्री करते हैं। जैसे अगर मैंने बोला कि मैंने कॉलेज क्विट कर दिया, आई डोंट थिंक पीपल शुड अटेंड कॉलेज, दिस विल बी अ कंट्रोवर्शियल ओपिनियन व्हिच आई एम गिविंग आउट, राइट। सो ये ओपिनियन बेस्ड कंटेंट। थर्ड इज प्रोसेस। जैसे सौम्या का मैं आपको दिखाई थी, आप उसका कंटेंट देखोगे तो पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करती है, दैट हियर्स हाउ आई क्रिएट कंटेंट कैलेंडर फॉर माय क्लाइंट्स, और हियर्स हाउ आई गो अबाउट ऑनबोर्डिंग अ क्लाइंट, हियर्स हाउ आई डू अ रिसर्च फॉर माय क्लाइंट्स। तो ऐसे जो प्रोसेस है वो बहुत अच्छे परफॉर्म करते हैं। मिथ बस्टिंग अच्छा परफॉर्म करता है, जहाँ पे आप बस्ट कर रहे हो कोई इंडस्ट्री के मिथ्स, और ऑफ कोर्स आपके टारगेट ऑडियंस के जो भी पेन पॉइंट है, अगर आप सोशल मीडिया मार्केटर हो तो क्लाइंट्स को आइडियाज दो कि 5 कंटेंट पीसेस दैट यू कैन क्रिएट,
5 ways to be more confident on camera. तो जो भी उनके पेन पॉइंट्स है उनको टैकल करो. देन आपको लोगों के साथ कनेक्ट करना है. मैंने अगेन बताया आपको किन लोगों के साथ कनेक्ट करना है. पहला, बिग क्रिएटर्स इन योर नीश. तो जैसे अगर सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हो तो जिसकी सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी, आप उनको फॉलो करो, उनके साथ कनेक्ट करो. दूसरे फ्रीलांसर्स जो आपके लेवल पे है, जो जैसे मैं फ्रीलांसिंग 3 साल से कर रही हूँ, तो मैं दूसरे लोग जो ऑलरेडी 2-3 साल से फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, मैं उनके साथ कनेक्ट करूंगी. और तीसरा, जो मेरे से एक लेवल ऊपर है या फिर मेरे टारगेट ऑडियंस भी है, जैसे कोचेस अगर मैं टारगेट ऑडियंस है तो मैं उनके साथ कनेक्ट करूंगी. ये 3 लोगों के साथ आपको कनेक्ट करना है इंस्टाग्राम पे ऑन डेली बेसिस. ठीक है. अब आप कंटेंट आइडियाज कैसे जनरेट कर सकते हो इंस्टाग्राम के लिए? आप हैशटैग्स पे जाओ. हैशटैग्स पे आपको भर भर के कंटेंट मिलेगा जो लोग ऑलरेडी डाल रहे हैं. आप वहां से इंस्पिरेशन ले सकते हो. ये पहला है. दूसरा, आप लिंक्डइन का कोई आपने पोस्ट बनाया, अच्छा परफॉर्म किया, आप उसको ही इंस्टाग्राम के रील फॉर्मेट पे डाल दो. या लिंक्डइन और ट्विटर पे आपने कोई पोस्ट पढ़ा, आपको अच्छा लगा, आप उसका अपना वर्जन बना के रील पे डाल सकते हो. तीसरा इज ट्विटर. अगेन सेम फॉर ट्विटर. आप अगर कोई स्पेसिफिक, जैसे मैं पर्सनल ब्रांडिंग पे कंटेंट बनाती हूँ, तो आई विल गो एंड सर्च पर्सनल ब्रांडिंग. उसके अंदर मुझे बहुत सारे कंटेंट पीसेस मिल जाएंगे. अगर मुझे कुछ अच्छा लगा तो मैं उसको उठा के अपने वे में बना के बना सकती हूँ एक रील. फोर्थ है गूगल. रेडिट पे आपको बहुत अच्छे अच्छे थ्रेड्स मिलते हैं. तो जैसे अगर आप पर्सनल ब्रांडिंग प्लस रेडिट सर्च करोगे तो आपको पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर रेडिट थ्रेड्स मिलेंगे. वहां से आप कंटेंट बना सकते हो यूज करके. टाइटल जनरेटर इज अ वेबसाइट जहाँ पे आपको ना, आप अगर सर्च करोगे इंस्टाग्राम, तो आपको बहुत सारे हाउ, व्हाट, व्हेन जो लोग सर्च करते हैं अबाउट इंस्टाग्राम, को वो मिल जाएगा. तो आप उसको यूज करके कंटेंट बना सकते हो. देन आपको एज अ फ्रीलांसर क्या नहीं करना चाहिए. इंस्टाग्राम और लिंक्डइन का कंटेंट हमने कवर कर लिया, बट एज अ फ्रीलांसर आपको क्या क्या चीजें नहीं करनी चाहिए. पहला, फेक टेस्टिमोनियल्स मत बनो. आई अंडरस्टैंड आप बिगिनर्स हो, आपको चाहिए कि आपके पास टेस्टिमोनियल्स हो, बट उसके लिए तरीके हैं. थोड़ा पेशेंस रखो एंड बीटा क्लाइंट्स लो एंड वहां से टेस्टिमोनियल्स लो. डोंट यूज फेक टेस्टिमोनियल्स बिकॉज अल्टीमेटली इंडस्ट्री में आपका नाम ही खराब होगा. नाउ हमेशा क्लाइंट्स को एक पोर्टफोलियो के साथ रीच आउट करो. कभी भी विदाउट पोर्टफोलियो रीच आउट मत करो. सैम्पल्स हमेशा क्रिएट करो. बहुत लोग क्लाइंट्स इतने लेने के लिए डेस्परेट होते हैं कि वो ही नहीं बनाते, सैम्पल्स ही नहीं बनाते. हमेशा अपस्किलिंग पे फोकस करो. आज 3 साल हो गए, फिर भी कल ही मैंने एक कोचिंग प्रोग्राम में इन्वेस्ट किया है जहां मैं 2 लाख मैंने पे किया. तो कभी भी एज अ फ्रीलांसर अपनी लर्निंग मत रोको. हमेशा नए नए कोर्सेज करते रहो, लर्न करते रहो, और हमेशा लोगों से हेल्प मांगो. बिकॉज if I didn't had any background, I come from a very very small town जहाँ स्विगी जोमेटो भी एग्जिस्ट नहीं करता, और वहाँ पे आपको मैप में भी नहीं दिखेगा बलरामपुर, आपने नाम भी नहीं सुना होगा. I didn't had anybody to help me, but I'm here just because I asked people for help and I utilized my network. तो हमेशा नेटवर्क करो, लोगों के साथ कनेक्ट करो. हमेशा हेल्प मांगने से कभी भी वो मत पीछे मत हटो. देन नॉट टेलिंग पीपल कि आप क्या काम करते हो और आप काम ढूंढ रहे हो. जब मेरे पास क्लाइंट्स नहीं आते, मैं हर किसी जिसको जानती हूँ मैं उसको जाके बोलती हूँ दैट हे आई एम लुकिंग फॉर क्लाइंट्स, अगर कोई हो तो बताना. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज फ्रीलांसिंग इज वेरी अनस्टेबल. अगर आप नेटवर्क नहीं करोगे, आप लोगों को बताओगे नहीं कि आप क्या काम करते हो, आपको क्लाइंट चाहिए, तो आप कैसे कैसे देगा आपको क्लाइंट्स, राइट? नॉट क्रिएटिंग कंटेंट ऑन सोशल मीडिया. ये इतने सारे फ्रीलांसर्स करते हैं और इसके वजह से वो इतने लीड्स मिस आउट करते हैं. Unbelievable, right? So always create content on social media if you're starting freelancing or even if you're not. Okay, तो हमने क्या क्या कवर किया आज? We covered identifying your skill and niche, portfolio कैसे build करना है, offer कैसे build करना है, beta clients को कैसे reach out करना है, और content कैसे create करना है on social media, Instagram and LinkedIn specifically, and वहां से leads कैसे attract करने हैं, right? अब आप लोग अपने questions पूछ सकते हो. जिसके भी जो भी All right, questions हो, guys. So it was an amazing session. तो अब Q&A session कर लेते हैं. As Shruti said, तो आपके जो भी questions है, आप please Q&A box है नीचे, उसमें please अपने questions type कर दीजिए सभी लोग. How to find good niche? कहाँ है questions? Shashank is asking how to find good niche. तो शशांक, गुड नीश ऑफकोर्स हाँ डिपेंड करता है मार्केट पे, बट उससे भी ज्यादा वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस में अच्छे हो. अगर आप किसी भी स्किल में अच्छे हो, उसकी डिमांड है मार्केट में, तो आपको काम मिल जाएगा. बट अगर आप अच्छे ही नहीं हो स्किल में, आपने जस्ट चूज कर लिया बिकॉज मार्केट में डिमांड है, तो आपको काम नहीं मिलेगा फिर भी, राइट? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू पिक अ नीश फॉर योरसेल्फ विच यू आर गुड इन, राइट? तो एक स्किल तो आप चूज कर लो अपने अकॉर्डिंग. नीश आप धीरे धीरे जब 15-20 प्रोजेक्ट कर लोगे तो आपको समझ में आने लग जाएगा कि अच्छा
कौन सी इंडस्ट्री के प्रोजेक्ट्स मैं अच्छे से कर पा रहा हूँ और मैं ज्यादा अच्छे रिजल्ट ड्राइव कर पा रहा हूँ, फिर आप अपनी नीश चूज करने पे फोकस करो. Okay. How to find real freelancers? तो फ्रीलांसर्स फेक कैसे होते हैं? आई एम ऑलरेडी ऑन लिंक्डइन एज अ यूआई यूएक्स डिजाइनर बट नॉट एज अ फ्रीलांसर. नो नो यूआई तो बेसिकली फ्रीलांसर तो एक ब्रॉड टर्म हो गया ना, उसके अंदर आप यूआई यूएक्स डिजाइनिंग कर रहे हो तो आपकी प्रोफाइल सही है. आप सिर्फ वो इम्प्लीमेंट करो कि मैंने कंटेंट जैसे बनाना सिखाया है ताकि आप लीड्स अट्रैक्ट कर सको. फ्रीलांसिंग और यूआई यूएक्स डिजाइनिंग कोई डिफरेंट नहीं हुआ, फ्रीलांसिंग के अंदर ही आ गया यूआई यूएक्स डिजाइनिंग. Okay, so कैन वी मेक अ फेसलेस रील? आई डोंट वांट टू शो माय फेस. यार मैं बोल तो दूं कि बना लो, बट उसमें कोई पर्सनालिटी नहीं रहती, लोग आपके साथ कनेक्ट नहीं करेंगे, तो आप अल्टीमेटली ग्रो नहीं कर पाओगे. इज व्हाट आर माय एक्सपीरियंसेस एंड आई वुड नॉट रिकमेंड मेकिंग अ फेसलेस अकाउंट. Payal is asking which skill will be the best to learn to do freelance work like content writing or copywriting. स्किल तो आपने खुद ही बता दी, कंटेंट राइटिंग और कॉपी राइटिंग, वही सीखो. और सिर्फ कंटेंट राइटिंग मत करो आई वुड से, बिकॉज अब वो एआई से समहाउ रिप्लेस हो गई है थोड़ी बहुत. तो कंटेंट राइटिंग के साथ आप एसईओ ऐड कर सकते हो. कॉपी राइटिंग में भी बहुत टाइप्स ऑफ कॉपी होता है, तो आप इनसाइड एड कॉपी राइटिंग, वेबसाइट कॉपी राइटिंग, सोशल मीडिया कॉपी राइटिंग आप चूज कर सकते हो उसके अंदर. हाउ फ्रीक्वेंटली शुड बी पुट टोफू मोफू एंड बोफू? तो अगर आप एक बिगनर हो जिसकी लिंक्डइन पे अभी कुछ भी प्रोफाइल नहीं है, रीच नहीं है, तो मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप ज्यादा टॉप ऑफ द फनल कंटेंट डालो. तो अगर आप 5 हफ्ते में कंटेंट डाल रहे हो तो उसमें से 4 टॉप ऑफ द फनल रखो, एक मिडिल ऑफ द फनल रखो, ताकि लोगों को ये भी पता चले कि आप क्या काम करते हो. जैसे आपकी रीच थोड़ी बढ़ जाती है, आपको इंप्रेशन आने लगते हैं, आपके 1000 फॉलोअर्स एटलीस्ट हो जाते हैं, उसके बाद आप 2 टॉप ऑफ द फनल, 2 मिडिल ऑफ द फनल, एक बॉटम ऑफ द फनल कंटेंट करो. Parna is asking, I am already on LinkedIn as a UI UX designer, but not as a freelancer. बता दिया Shouldn't? मैंने, वो बता दिया. Okay, okay, okay. Should we need to post every day on LinkedIn? Deepika, I would not say every day. आप एक frequency put decide करो जो आपके लिए work करती है. Because मैं आपको बोल दूं अगर every day करना है, आप नहीं कर पाओ तो फिर क्या फायदा है ना. तो चूज आप 3 बार अगर कंसिस्टेंटली कर सकते हो तो 3 चूज करो, और फिर हर बार 3 पोस्ट करो ही इन अ वीक. अगर आप 5 पोस्ट अफोर्ड कर सकते हो तो 5 पोस्ट करो. डिपेंड्स ऑन यू, बट आई वुड रिकमेंड 5 पोस्ट मंडे टू फ्राइडे. हाउ टू मेक योरसेल्फ यूनिक इन अ स्किल पीपल आर ऑलरेडी डूइंग? एक तो आपका जो एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज है वो आपको यूनिक बनाएगा. दूसरा, हर किसी का काम करने का प्रोसेस अलग होता है. अगर आप एक इंसान लिंक्डइन पर्सनल ब्रांडिंग अलग तरीके से कर रहा है, मैं अलग तरीके से कर रही हूँ, तो आपका प्रोसेस आपको यूनिक बनाता है. Krutika is यस आई asking, कैन my शेयर. name is Krutika. I am from Dubai. I need to know best freelancer website to work as a beginner. सी मैंने आज तक अपवर्क और फ्रीलांसिंग, फाइवर, ये सब जो वेबसाइट्स है इनसे फ्रीलांसिंग नहीं करी है. बिकॉज इसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन है, और दूसरा एज अ बिगिनर प्रोजेक्ट्स मिलना डिफिकल्ट है. थर्ड, बहुत सारे स्कैम्स होते हैं वहाँ पे. तो मैंने हमेशा से सोशल मीडिया के थ्रू ही क्लाइंट्स एक्वायर किया. बट यू आर हैप्पी टू डू इट. इफ यू वांट टू डू इट यू कैन डू इट डेफिनेटली. बहुत लोग हैं जो अच्छा कर रहे हैं उनके वेबसाइट्स के थ्रू भी. तो आप यूट्यूब पे अगर सर्च करोगे हाउ टू गेट क्लाइंट्स थ्रू फाइबर, आपको बहुत सारे वेबसाइट्स मिल जाएंगे, तो आप वो भी यूज करके फाइबर, अपवर्क और freelancer.com इन पे भी कर सकते हो. Anmol is asking about lead generation. आई अभी टॉक्ड अबाउट इनबाउंड लीड्स. कल हम आउटबाउंड डिस्कस करेंगे कि आप लोगों को रीच आउट करके कैसे लीड जनरेट कर सकते हो. सम व्हाट्सएप ग्रुप्स नेम्स आर फ्यूलर का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, लिंक्डइन विजार्ड्स करके एक व्हाट्सएप कम्युनिटी है. ये दोनों आई थिंक इज द बेस्ट. तो आप इन दोनों को ज्वाइन कर सकते हो, फ्री है दोनों. Shruti is asking, don't know what niche suits best for me. How can I find that? तो नीश एज आई सेड आपको टाइम लगेगा ढूंढने पे. आप स्किल चूज करो कि आप किस चीज में अच्छे हो. स्पेंड टाइम विद योरसेल्फ एंड फिगर आउट कि आपको क्या करना पसंद है, और फिर देखो कि मार्केट में उस चीज की डिमांड है क्या. अगर डिमांड है तो फिर वो करना शुरू करो, उसके लिए प्रोजेक्ट्स लेना शुरू करो. धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि अच्छा उस स्किल के अंदर भी कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज है जिसमें मुझे काम करके अच्छा लग रहा है एंड आई एम एबल टू गेट रिजल्ट्स. तो इट्स अ प्रोसेस, बट स्किल आपको स्टार्टिंग में फिगर आउट करनी पड़ेगी खुद के साथ बैठ के, वो कोई और आपको नहीं बता सकता. Okay, so I think let's wrap up the today's session, guys. It was an amazing session. So, kal we make sure कि you guys
should attend tomorrow's session as well, क्योंकि कल जो टॉपिक कवर होने वाले हैं वो बहुत ज्यादा क्रूशियल होने वाले हैं। अगर कल के टॉपिक्स आपने स्किप कर दिए तो आप बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मिस कर देंगे। सो थैंक यू सो मच श्रुति, इट वाज एन अमेजिंग सेशन। थैंक यू सो Thank मच you. गाइस फॉर ज्वाइनिंग। कल दोबारा से Thank- सेम टाइम सेम इस पे मिलते हैं। एंड जाने से पहले हमारी बिस गुरुकुल की जो एक फेमस लाइन है वो मैं बोलना चाहूंगा, वी ट्रेन, वी एजुकेट, वी इंस्पायर, वी आर बिस गुरुकुल। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू श्रुति। No problem. Thank you. Thank you so much Thank for you. joining, guys. Okay, Bye. Take care. bye.